Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द फोर्थ टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. कैसे हो ब्रो? मैं फिट हूँ सादी, तू फिट है? हाँ बेहतरीन. हाँ. This is going to be a really fun podcast because there's a lot of discourse. Lot of discourse in a drawn test match. Yes, I love yes. it. Ha. Social media has gone absolutely berserk, and I mean it is kind of a big event, Sadi, because a test match over here has been drawn in the era of baseball in which one team played for the draw. We've never seen it before. I mean, credits to India for drawing this test match. देखो, for them this is a win. सही है, इस बात को समझो, because their only way out of this test was to draw it, and they executed those plans to perfection. But I just want to highlight over here कि we've been seeing baseball for 3 years now. Yeah. ठीक है. एक ही और टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, the Manchester test, and that was a rain impacted game. So this is news, and I feel like बात इस पे होनी चाहिए. And after all, you know, India have managed to keep the series alive. Yes, they have. 2-1 है और if India managed to win the last test, 2-2 draw कर लेंगे वो सीरीज और बहुत बड़ी विक्ट्री होगी उनके लिए. Absolutely. In fact, I think they even have momentum at this point. At this point, तो I think England's broken. Yes. England इस वक्त might be broken physically and mentally. तब भी चढ़ी होगी. I think they've bottled it, bro. Yeah. They were in prime position to win this test match. 0-4-2 कर लिया था. बिल्कुल, they should have held on to their catches, right? And then this result might have been different. Look, the fact that the series remains alive, 2-1 की lead है England की, and India, if they wish to square the series, they have to win at the Oval, and England still haven't won it, the series. Yes. So उनको भी secure करनी है, everything to play for at the Oval, and Sadi, this is the beauty of the World Test Championship. Every match matters. Every single percentage point matters. Yes. यही तो खूबसूरती है. और इंडिया को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है इस ड्रॉ के साथ, क्योंकि अगर हार जाते तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं मिल रहे थे उन्हें. हाँ, वो They've drawn a test match. और उसके बाद तुमने बात की थी पहले कि बेसबॉल एरा में ड्रॉ करना मैच बड़ी बात है, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया 2025 में, ब्रो. बिल्कुल भी नहीं. एंड इट इज क्वाइट हैरोइंग. आई डोंट लाइक दीस सॉर्ट ऑफ प्लेइंग कंडीशंस. नहीं, ठीक है, जहां पे ड्रॉ इज इमिनेंट, लाइक व्हाट 24 विकेट्स फेल अक्रॉस द टेस्ट 5 दिनों में, राइट? एंड इवन दो देयर वर ओवरकास्ट कंडीशंस फॉर वास्ट मेजॉरिटीज ऑफ दिस गेम, राइट? बट you know, it was mostly pretty dead track. First session के कुछ overs में थोड़ा सा बहुत करती थी बॉल, उसके अलावा it was pretty flat. It's very interesting in the sense that yes, we saw a bit of variable bounce on day 3 and day 4, starting from day 3 and day 4, but it wasn't enough to kind of trouble the batters too much. I still don't know. I'm confused. Okay, were the worst batting conditions in this test match in the first innings, or did India just not apply themselves? Did they just bat poorly? I think they batted poorly. क्योंकि मैंने पहला सेशन देखा था, बॉल चीजें करी थी, they didn't lose a wicket. नहीं, I think they batted scored poorly. what 78 runs in 26 overs without losing a wicket. तो वो वाला फेस तो निकाल के थे. और I think सिर्फ वो इशू नहीं है कि they batted poorly. I think ऋषभ पंत की जो इंजरी थी ना, that impacted them a lot. Absolutely it did, because एकदम से वो आपकी एक तरह की विकेट ही गिर गई, even though वापस आया बैटिंग. लेकिन फिर भी मतलब वो वाला इम्पैक्ट नहीं डाल सका. क्रेडिट्स टू हिम कि उसने इस इंजरी में भी इतने वापस आ गया, वही बहुत बड़ी बात थी. लेकिन ऑब्वियसली आप जो एक्सपेक्ट करते हो उस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं आएगी ना उसके बाद. करेंगे पंत पे बात आराम से. बट आई थिंक तुमने फर्स्ट इनिंग्स की बात की है ना, जहाँ पे इंडिया की बैटिंग की बात की, वो एक बहुत बड़ा इशू था उनके लिए कि पंत इंजर्ड हो गया. था इशू, बट आई एम जस्ट सेइंग कि व्हेन दैट इनिंग्स एंडेड विद इंडिया स्कोरिंग 358 रन्स, I didn't know if that was enough or not. मैंने तो बोला था नहीं. तुमने बोला था, but I honestly didn't know. I was like, क्या ये पार स्कोर कर गए हैं, क्या ये इन लोगों ने कम किया है? ये मुझे पता था कि इन लोगों ने ज्यादा नहीं किया. ठीक है, I was confused between par or less than par, right? And clearly it was less than par. England then go on to score 669. Lead चढ़ा दी. India conceded a lead of 311 runs, and from there they managed to draw the test show that grit and gumption to go on and draw the test match. 0-2 okay. 0-2 okay. That definitely, like, India deserves a lot of praise for that. Heaps of credit, because that was their only way out of this test match. And when they say this feels like a win, I understand it. It should feel like a win. It is a win. आपने series alive रख ली. You still have a chance to draw the series. You can, you know, end the series with a fair few percentage points in the World Test Championship cycle. बहुत ज़्यादा wins हैं, minor wins, जो कि major wins बन सकती हैं आगे जाके. So yeah, full credit to India. Also full credit to Ehsan Raza. Ehsan Raza was good. क्या umpiring कर दी है boy ने. First time in my life I've been like, okay. अब मुझे पसंद आ. नहीं, Ehsan Raza has been good, man. In the past, I think he had a lot of these 50-50 decisions. He's all right. Never had any issues with him. I think he did not make a single mistake in this test match. Neither did the other guy. मैं focus सिर्फ एहसन भाई पे कर रहा था. मैंने कहा खड़े हैं फिर. खैर, anyway, जितना ड्रामा हमने देख लिया at the end of this test match.
यार वो था ड्रामा या बना दिया वो तो गया था हम करते ड्रामा? हैं बात, मगर व्हाट इट हैज डन इज दैट इट हैज बेसिकली सेट अस अप perfectly for the हाँ over. वो तो है। सारी नजरें सब हाँ। टेस्ट मैच पे होनी है, एंड जो आप कहते हो ना, एक पहले इट वाज अ वेरी ग्रूलिंग टेस्ट सीरीज, हार्ड फॉट, बोथ टीम्स आर फाइटिंग टूथ एंड नेल। चौथे टेस्ट में आके मतलब लोग टूट रहे हैं भाई 20 दिन खेल लिए 4 टेस्ट में। लोग We've टूट had रहे हैं। 4-5 day test matches. 4-5 day test You don't really get to see that very नहीं frequently. नहीं करवा लेते हैं 4 डे टेस्ट मैचेस, क्या कहते हैं लोग आईसीसी। बिल्कुल। Yeah. So yeah, I mean the fact कि you know आकर अब टेम्पर्स फ्लेयर कर रहे हैं और टीमों में फड्डे हो रहे हैं, I kind of expect that to agree because both teams really want to win. But yes, the fact that so much has been made of I don't think इतनी बड़ी कोई डील भी थी जितनी बना दी गई है। इतनी बड़ी डील नहीं थी। देखो, Ben Stokes was well within his rights to offer the handshake, And Jadeja was well within rights to refuse that handshake. Absolutely. It is both of Jadeja and Washington Sundar's right to go on and play longer. मैं कहता हूँ forget the milestones. Had they even intended to just bowl it into the ground, कि यार नहीं हम end तक खेलेंगे, we'll play all the overs. You guys should get even more tired. We'll tire you out even further for the oval test. That was fine by me. Especially considering कि 3 दिन बाद ओवल टेस्ट शुरू हो रहा है। बिल्कुल, मतलब क्यों there's नहीं? been no break. तो क्यों नहीं करोगे? हाँ, क्यों नहीं Absolutely. करोगे? आपने 100 भी करनी है वो भी करो, थकाना है करो, आपकी राइट है, इसमें तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल। और मतलब यार ये कोई रूल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब अगर तो आपने ऑफर किया हैंडशेक, जाहिर आप कर सकते हो, लास्ट आवर ऑफ प्ले, गेम इज डेड, कॉन्टेस्ट इज डेड, ठीक है। अगली टीम ने अगर रिजेक्ट कर लिया then so be it. You know, there is no right and wrong. There is no result on the line. You know, Sadi, I was talking about milestones a lot, ठीक है, on Twitter with you अभी earlier, ठीक है। It's been ट्विटर पे तो गालियां पड़ने लगी। ट्विटर पे तो मुझे काफी गालियां भी पड़ी है, हालांकि मैंने तो बल्कि साइड ली थी। It's interesting because I think we've even talked about this before. How obviously every cricketer cares about milestones. Obviously. A bowler always, you know, waves the ball and batters lift their bat and everything when they get to milestones. अगर आप क्रिकेट पिच पे मैच जीतने के लिए और पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं हो तो आप क्या कर रहे हो? मैं तो ये मानता हूँ। देखो, milestones सबके लिए जरूरी होते हैं. You have honors boards and what not, and I think milestones need to be celebrated as well. मुझे कोई इसमें मसला नहीं लगता. अब cricket is played across various countries across the globe, right? हर जगह दुनिया के कोने में लोग खेल रहे हैं. इटली में भी अब खेल रहे हैं. वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के ऑपोजिट कोने हैं, बीच में एशिया आ जाता है आपका. Now, as far as different cricket cultures go, because every cricket culture is different, I do genuinely feel that milestones are valued more by subcontinent cricket cultures. मैं ये नहीं कह रहा दूसरे करते नहीं है, but they are valued more by subcontinent cricket cultures. ये मैं आपको experience से बता रहा हूँ. Why am I obsessed, or why was I obsessed with Vian Mulder getting to 400 or crossing 400? Why am I always looking at roots numbers, which we'll also get into? क्योंकि ये मैं भी इस कल्चर का हिस्सा हूँ. और ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं हो रही होती, कल्चर की जब बात हो रही होती है तो उसके अंदर फैंस का भी उतना ही रोल होता है. बिल्कुल. और हम लोग एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वी डू सेलिब्रेट माइलस्टोन्स. बिल्कुल. ऊपर से यार, लेट्स से ठीक है, कॉन्टेस्ट इज डेड, देयर आर 15 ओवर्स टू गो, एन आवर ऑफ प्ले, एंड बेन स्टोक्स, माना यार योर टीम वुडंट हैव प्लेड फॉर द माइलस्टोन्स, तो उतर जाते. ठीक है, नहीं उतर इसका नहीं हो भी सकता था, नहीं उतरता, हो भी सकता नहीं उतर. मेरे ख्याल से अगर तुम्हें लगता है कि बेन स्टोक्स अपनी टीम को उतारता अगर उसके पास चांस होता कि अगली टीम को थकाना है और सेंचुरी भी हो जाए? मेरे हिसाब से, ठीक है, if you are a subcontinent team, you are always going for the milestones. If you are not a subcontinent team, you could and you couldn't. दोनों चीजें हो सकती हैं. वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर. I think it depends on the match situation more. Situation तो dead है ना, the contest is dead. कॉन्टेक्स्ट भी तो देखो, कॉन्टेस्ट तो डेड है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डेड नहीं है इस केस में कि यार अभी एक टेस्ट मैच बाकी है. I agree. थकाओ. मैं उस रैशनल से अग्री करता हूं, मगर they didn't do that. They went off after the milestone, so it is milestones. ठीक है. और मैं नहीं, आपकी फर्स्ट सेंचुरी इनसाइट मैं तो करूंगा. मैं विलिफाई नहीं कर रहा सादी. मैं ये कह रहा हूं कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू माइलस्टोन्स इन अ सिचुएशन वेयर द कॉन्टेस्ट इज डेड. सम पीपल विल से दैट्स इनफ, वी हैव डन आवर जॉब, हम और नहीं करना चाहते. सम पीपल विल से नहीं, हमने सेंचुरियां करनी है, जो किस केस में था. एंड सम पीपल विल से, जो मैं और तुम कह रहे हैं, थकाने वाली बात. आई थिंक ऑल थ्री थिंग्स आर राइट एंड रॉन्ग. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन ऑल थ्री थिंग्स. अच्छा, मैं बाय द वे कह रहा हूं, आई वुड हैव प्लेड फॉर पर्सनल माइलस्टोन एज वेल एंड फॉर दैट एंगल के थकाओ. सेम मेरा भी अगर एक लड़का होता इसने कभी शतक नहीं जड़ा हुआ, मैं कहता तू जड़ और हम एंड तक खेलेंगे, इनको और थकाएंगे. ना भी होता वो कहे यार नहीं मैंने करनी है सेंचुरी, कर ले यार. मगर यार कोई गुनाह नहीं कर दिया जडेजा ने कह के नहीं हमने माइलस्टोन्स के लिए खेलना है. आई मीन द गेम वाज डेड. अच्छा, वो तो एंगल एक हो गया ना. और ट्विटर पे वैसे ही पागल हो गए लोग. आई डोंट नो व्हाई. ऐसी वैसी आवाम. अच्छा, उसके बाद एक स्टोक्स ने वैसे अच्छी बात नहीं की थी. यू कैन स्कोर अगेंस्ट हैरी ब्रो, कांट यू?
यार देखो, फ्रॉम स्पोर्ट्स कह रहा हूँ, फ्रॉम स्टोक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ही डजंट वांट टू बोल हिज बॉलर्स एनीमोर। ठीक है ना, तो बस उसने दे दी हैरी ब्रूक को, मेरी तरफ से और भी किसी को दे देता, क्रॉली करा लेता बॉलिंग, करवाता, डकेट भी करवाता, लेकिन फिर इस तरह बैटर को क्या बोलना चाहिए जब स्लेजिंग उस टाइम में मुझे अच्छी लगती है जब मैच जीतने वाला हो। मैच इज डन, आप उसे जाके कह रहे हो आप ब्रोक के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर करोगे। आई थिंक इट्स फेयर टू बी क्रिटिकल ऑन हिम ओवर देयर। मैं थोड़ा सा इसलिए शायद हिपोक्रेट लगूं कि आई एम अ बिट ऑफ एन एसहोल माय सेल्फ ऑन अ क्रिकेट फील्ड। यू आर। तो मैं अब किसी को क्या विलिफाई करूं हीट ऑफ द मोमेंट पे। हां, साथ ही मैं ये जरूर बोलूंगा, इफ स्टोक्स डिड नॉट शेक देयर हैंड्स, व्हिच फॉर अ लॉन्ग टाइम आई थॉट ही डिडंट, देन आई थॉट इट वाज अ प्रॉब्लम। ऑन योर वर्स्ट डेज, गंदी सी गंदी लड़ाई हो जाए, यू ऑलवेज शेक योर हैंड्स। आई ऑलवेज डू दैट एटलीस्ट। तो जब मुझे पता चला कि the hands were shook, I was like, yeah, this is a non-issue then. No. Then move on with it. मैं मजे की बात बताऊं, सारे incidents were non-issues that were made into issues. Absolutely. By the Twitterati. Yes. और दूसरी बात ये, वो Jonathan Agnew, Aggers, him saying that, you know, it's such a farcical end and individual milestones are not greater than the team. Yeah, I agree with you as long as the result is on the line. अच्छा, ठीक है, जब रिजल्ट ऑन द लाइन नहीं है, यू आर नॉट द वन, सॉरी एगर्स, टू गेट टू डिसाइड वेदर द टीम शुड गो फॉर द माइलस्टोन्स और टायर आउट द प्लेयर्स और नॉट। उसने रूट की बारे में कोई तारीफ की थी या कुछ कहा था कि ही इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर नाउ और एनीथिंग? पता नहीं, बट पॉइंट इज कि अगर तो वो किया था तो फिर हिपोक्रिटिकल है ब्रो। थोड़ा सा पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैटर नहीं मैटर। दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर सिचुएशन इन व्हिच द कॉन्टेस्ट इज इन फैक्ट डेड। द टीम व्हिच इज प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ हैज अचीव्ड द ड्रॉ, तो मगर उनकी मर्जी है। एग्जैक्टली, तो फिर आप कौन होते हो कहने वाले? Exactly. फिर डू नॉट सेलिब्रेट अदर माइलस्टोन्स अगर वो अपने कर रहे हैं। All I'm trying to say is that there is nuance in this conversation, जो nuance हमारी सबकॉन्टिनेंट में हमको नजर ही नहीं आती। यहाँ पे फॉरेन पिच फॉक्स निकाल के बाहर आ जाते हो, मैंने कहा there is no right or wrong, मुझे लग रहा है पीछे पड़ गए। मुझे लग रहा है एगर्स को भी नहीं समझ आई, नहीं समझ आई मेरे ख्याल से। और इस मुझे इस होलियर देन दाओ एटीट्यूड से फर्क पड़ता है, मुझे गुस्सा चढ़ता है कि यार आपने हमारी वाली चीज नहीं की तो आप बुरे हो गए हो, ये गलत है भाई। वो फर्क कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके कल्चर में अगर वैल्यू भी होता है ज्यादा, वो करें माइलस्टोन को रीच या ना करें, वो उनका मसला, तो उनकी चॉइस है, दे हैव अ राइट टू मेक दैट डिसीजन। अनलेस वो कुछ अनलॉफुल करने क्रिकेट पिच के ऊपर, यू हैव नो राइट टू कमेंट ऑन दैट। इन द प्रीवियस टेस्ट मैच, इंडिया गेव अवे अ big moment in the game. Turning point हो गया वो when before the break Rishabh Pant went for the single so that KL Rahul could be on strike on 99 ताकि लंच पे वो जाएं तो वो 100 कर चुका हो। He lost his wicket in the hunt of his mate's milestone. तो milestone वहां पे गलत था, ठीक है, वहां पे कोई तुक नहीं बनती। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो बेशक गलत था। हाँ, और पता है, लेकिन आप फिर भी जाके उसे ब्लेम नहीं कर सकते कि यार माइलस्टोन के लिए क्यों गए, जहां पे इस तरह की सिचुएशन, अगर उसकी टीम में कोई मसला नहीं है। हाँ, नहीं मसला तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डिस्कस किया क्लियरली कि हम तो ये जा रहे थे इसके लिए। उन लोगों ने कौन सा कुछ झूठ बोला है? वो तो अगर कह रहे कि हम जा रहे थे माइलस्टोन्स के लिए, वो तो कह रहे कि वी फेल्ट दैट द प्लेयर्स डिजर्व्ड इट। ये फीलिंग ऑफ डिजर्व वाली आ कहां से रही है? द क्रिकेट कल्चर। यू कैन क्रिटिक के यार ये सही है या गलत है, टीम फर्स्ट आनी चाहिए या पर्सनल माइलस्टोन्स फर्स्ट आने चाहिए। इसमें टीम फर्स्ट का कोई किस्सा ही नहीं है, क्योंकि द गेम इज डेड। हाँ, इसमें तो नहीं है। अगर तो सादी, जैसा फॉर इंस्टेंस लेट्स से a team is chasing 350 and a batter is batting in the 90s और last 10 overs में 150 रन चाहिए and he is taking singles, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा ये बकवास है। लेकिन जब नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंगली है, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी, वो पूरा ओवर डॉट खेल जाए, वो पूरी इनिंग्स डॉट खेल जाए, तो फिर भाई ये कोई, this is not even a spirit of cricket debate, I feel, because there are no rules around this and there was no right or wrong. If they said कि हाँ ठीक है हम ड्रॉ ही करने निकले थे, हमने कर लिया, we don't care, we're going off, that was fine. If they hung around for milestones, that was fine. If they stuck around till the end of the day, that was fine as well, क्योंकि I get the rationale of tiring out the opposition. So it was quite stupid and handshakes became a thing. पिछले वाले मैच में balls थी और अब हैंडशेक्स हो गए। पहले वो ऑफर किया, लिया नहीं, फिर सबने तहलका मचा दिया कि हैंडशेक ही नहीं हुआ। एक ऑल्टर्ड वीडियो लगाई है, मैंने तो वीडियो देखी है ना, मैंने कहा यार स्टोक्स नॉट ऑन यार। ऑल्टर्ड नहीं थी वो ब्रो, आधी कटी हुई थी ना वो आई थिंक दूसरा एंगल था। पहले जैसे ही मैच खत्म हुआ, सबसे पहले हाथ में लाया स्टोक्स ने और फिर उसके बाद बाकियों से हाथ में लाना था, तो वो वाला पार्ट था। जो भी सीन था, जो भी आपने वीडियो शुरू में लगाई है, दैट थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ a vast majority of people on Twitter thought कि handshake हुआ ही नहीं है। including you. I thought कि handshake हुआ नहीं है, and you know at that point I was like, you know what, this is so loserish, this needs to be called out. But when I saw 4 hours later when I logged back in कि handshake तो हुआ है, मैंने कहा यार ऐसी तरह रौला मचाया हुआ है। Once the hands are shook, that's it man, you leave everything else on the field। हाँ, अब आप आगे अपनी लाइफ में जाओ। हम भी मूव ऑन कर जाते हैं, हम भी मेरे ख्याल से मूव ऑन कर जाते हैं, और अभी भी काफी लोगों को बात नहीं समझ आई होगी। छोड़ दो, तुमने अपना जो था दिल में कह दिया।
Yeah, I think it was बस- an important discussion to बस have. अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया अब आगे Absolutely. जिसको समझ आता है ठीक है, नहीं आता वो भी ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, खैर, आज जी मैच पे आए जरा। टॉस पे आओ। हाँ। Ben Stokes made an interesting call हाँ. when he won the toss. So there's a stat. Yes, Matt Roller sir. shared this stat, right? That no team has ever won the toss at Old Trafford, opted to field first and won the game. And at a time during the game when England had posted a lead of 311, I was like, ये टूटने वाला हाँ. record. नहीं हुआ. No. And as you said, Old Trafford पे in 2025 we haven't seen a single result. 0. 24 wickets fell in the game. It was mostly flat. Let's be हाँ. real. अगर थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस आया भी है, बहुत ही कम था या वो। पहली इनिंग्स में हल्की सी अगर मुश्किल थी भी बॉल को खेलना तो वो it भी- was just not a good cricket surface. आई थिंक वो भी पहली इनिंग्स में भी ना पहले सेशन में ही थी, उसके बाद थोड़ी इजी हो गई थी, और पहले सेशन में वो सरवाइव करके थे, वही उनकी सक्सेस थी। बिल्कुल। हाँ। I mean, Shubman Gill said that it was a good toss to lose, but it was quite the opposite, I feel, in the end, because England had secured तो नहीं, but they couldn't lose this game हाँ. after posting 669, हाँ. right? 311 रन की लीड के बाद अब हारते नहीं हो मैच. But then again, the conditions proved to be such that even Shubman Gill's team fought back hard. Credit to them. हाँ. But I don't want to see test matches in which just 24 wickets fall. हाँ, सही बात है। It really is killing the sport. हम लोग ने काफी तनकीद की हुई है रावलपिंडी टेस्ट की, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, उसमें 14 विकेटें गिरी थी, बाय द वे ओनली 14 विकेट्स वर लॉस्ट। यार यू वांट रिजल्ट ओरिएंटेड सर्फेसेस। अगर तो ग्लोबल वार्मिंग का सीन है तो यार आप फिर कुछ और करो सर्फेस को। आई डोंट नो, डू समथिंग विद इट, राइट? या फिर आप ना खेलो ओल्ड ट्रैफर्ड में। हाँ, आप ना खेलो ओल्ड ट्रैफर्ड में। आपके पास ट्रेंट ब्रिज भी तो हाँ. पड़ा हुआ है, आपके पास और भी साउथहैम्पटन पड़ा हुआ है। बहुत ग्राउंड है उधर तो। एजीएस बॉल, रोज बॉल, टॉन्टन, हालांकि हाँ. वहां पे टेस्ट क्रिकेट तो मेरे ख्याल से नहीं होती। तो क्यों नहीं होता? Yeah. करवा There's सकते। Bristol, हाँ, plenty of grounds. बथेरों ग्राउंड है। बथेरों ग्राउंड है, इंग्लैंड में तो कोई कमी हाँ. नहीं है। आई नो कि उनके सेट होते हैं। सेट होते हैं, लेकिन फिर अगर Yeah. नहीं आ रही वहां पे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पिचेस नहीं चेंज कर सकते, आपको पता है एक ट्रेंड चल पड़ेगी यहाँ पे, मैचेस नहीं मतलब रिजल्ट नहीं आ रहे, ड्रॉज हो रहे हैं, तो you can change, you can be flexible. Whilst this was a better draw in the sense that one team only could draw and they managed to. हाँ. तो एक तरह से उनकी जीत हो गई. So I'm not overcritical हाँ, that, but हाँ, ओवरऑल इतनी डल गेम नहीं थी। हाँ, But as a spectator, as a consumer of Test cricket, you want to see result-oriented pitches, and you want to see, you know, at least the opportunity for a team to go and win it. यहाँ पे तो I feel like midway through day 5, we all knew कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता. midway through, हाँ, हाँ, midway through. midway through. Yeah. But हाँ. I think at Lunch that के point, बाद. at that point हाँ. when they kind of just overcame the lead, हाँ. I was like, अच्छा यार इनके भी 4 विकेटें गिरी हुई हैं. England would need like wickets in clusters. एक catastrophic batting collapse हाँ, आए इंडिया की तरफ से. Colaspus Maximus। हाँ, Colaspus Maximus ना आए तो ये मैच मुक चुका है. And you know, you want to see an even contest between bat and ball. I agree. ड्राई समर है, बहुत धूप पड़ रही है, लेकिन देखो ना, whatever. पहले 3 टेस्ट मैचेस में भी तो आया ना रिजल्ट। और यहाँ पे इतनी बारिशें भी हुई थी, उन बारिशों के बावजूद रिजल्ट नहीं आया. आई थिंक दैट्स एन इशू दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड. एंड ओल्ड ट्रैफर्ड को फिर आगे टेस्ट देना है कि नहीं देना? डू दे डिजर्व अ टेस्ट मैच अगर यहाँ पे सिर्फ ड्रॉज हो? और यहाँ पे बारिश का भी खतरा होता है. यू नो दैट इस मैच में तो नहीं हुआ, बट इट इज रेनचेस्टर, राइट? मैनचेस्टर, ओल्ड ट्रैफर्ड नाम से ही ना थोड़ा मुझे मसला है। वैसे आपस की बात है, इंग्लैंड के मैंने काफी ग्राउंड देखे हैं, It's सारे a pretty खूबसूरत shit हैं. ground. This is an ugly looking ground. अजीब से स्टैंड्स हैं यार। The only place I'd want to be in this ground is वो जो होटल है. हाँ, उसकी हो- बैल्कनी में मैं हूँ हाँ, तो मैं खुश हूँ. होटल बाकी ये जो प्यारा। एलियन यूएफओ रैंप्स बना दी हुई है, सोलर पैनल लगते हैं यार, बहुत ही कोई बदसूरत किस्म का ग्राउंड है ओल्ड ट्रैफर्ड का. सबसे मैं देख रहा था, मेरी खाला मेरे साथ देख रही थी, कहती कि बेटा इंग्लैंड के ग्राउंड तो बड़े प्यारे होते हैं, ये वाला कैसा है? मैंने कहा बस खाला, क्या कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड नाम ही कुछ ऐसा है। बदसूरत किस्म का ग्राउंड है. यूनाइटेड फैंस मुझे गालियां देने तो वाले दे गालियां. दे हम तो ओपनली हेटर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. 2 गालियां। Yeah. जोक्स ऑन यू। हमारा तो ओल्ड ट्रैफर्ड। हमारी तो ख्वाहिश है, मेरी और साथी के मरने से पहले हम एक दफा यूनाइटेड को रेलेगेट होते यार तुम बहुत आगे ले गए हो, मरने से पहले ये इस सीजन रेलेगेशन चाहिए मुझे। ये अच्छा, तो मैं दस्ती अच्छा। रेलेगेशन चाहिए तुम. अच्छा चलो जी। Anyway. चेंजेस की कुछ इंडिया ने। Yeah, I wasn't too happy with their changes. टू हैप्पी, यू बीइंग जेनरस। Yeah, I like Sai Sudarshan, don't get me नहीं, wrong. नहीं, साई और का- मेरे ख्याल से साई को शुरू में जो निकाला था वो बहुत जल्दी निकाल दिया था. But I don't think Karun Nair should have been axed so quickly. I feel like he had been delaying Shubman Gill's entry point. He had been doing a job. He hadn't gotten a lot of runs, but आप थोड़ा सा faith तो रखो अब. डू यू थिंक दिस इज इट फॉर करुण नायर इन This might be it, इंटरनेशनल right? Because Sai will probably get the next game as well because he scored a 50 and whatnot. I think थोड़ा सा ज्यादा faith रखना चाहिए था यहाँ पे करुण के अंदर. He had done the hard yards. माना कि उस तरह वो translate नहीं कर पाया, and he has a very weird test career where his highest score is 303. Not out, I think. और उसके बाद कोई 40 something है.
वो भी अभी आया. हाँ, so his median score would be really dodgy. Yeah. Basically 50% mark पे जो भी उसका score बन रहा है. But either way यार, this was a seasoned performer in first class cricket. मैं ही नहीं कह रहा कि इसको प्लान्स के लिए फ्यूचर में रखूं, मगर आप उसको एक सीरीज सही तरह दे दो यार. साई इज यंग, साई का टाइम तो फिर भी आना है. No. और अभी भी आ गया है. I think they'll play Sai from now on. I They've feel moved on like from Karun now. One guy that should potentially come in the future is Sarfaraz, because he has a killer first class average. and he उसके बाद shed- उसने जो weight lose किया bro, he crazy. shed all of that weight and credit to him for that. तो वो एक बंदा है जो आप कह सकते हो कि maybe India missed him in the squad, right? But other than that, है team in transition, नए लड़के आने हैं. I would have kept a bit more faith in Karun Nair. Again, it's subjective. Some people wouldn't have, but I think कि जो उसका रोल था नंबर 3 पे, जो वो गिल का नंबर डिले कर रहा था, वो उसने इतना बुरा नहीं किया. I think Sai ने भी ठीक ही कर दिया. साई भी ठीक था यार. साई wasn't bad at all. And then Reddy was injured. Reddy तो वो was- तो चलो ऑटोमेटिक हो गई चेंज. मुझे बताओ. Automatic change with Shardul. All right. Yeah, that's not automatic. But मुझे बताओ, तुम शर्दुल ठाकुर को खिलाते? नहीं. मैं भी ना खिलाता. No. And I have tweeted this. I also got a lot of shit for this. And I stand by it. When you play Shardul Thakur, you are not gaining a frontline batter or a frontline bowler. You do not trust him with the ball. वो पिट भी रहा था थोड़ा सा. Yes. And with the bat, उसने माना 41 किए. मगर इस मैच में तो सबने ही रन्स किए. उसमें भी उसने 41 किए. मैं इस तरह भी कह सकता हूँ. I think he maxed out with 41. I literally feel कि a guy who averages 17 in Test cricket is not your all-rounder. No. समझ रहे हो? ये तो स्टार्क की भी 20 से ऊपर एवरेज है यार. समझ रहे हो? मानता हूँ मैं. हाँ. I don't think he's a It's good bonus cricketer. runs. You look at Shardul as bonus runs, and sometimes maybe he clicks and scores a 50. Is he getting a ton? नहीं. Is he batting time? Is he like वो proper batter की तरह खेल रहा पे? नहीं. I still feel कि playing Shardul Thakur is India shooting their own leg with a gun. नहीं भी फजूल में बैटिंग लाइनअप डीप करने के चक्करों में. अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप. You've got the likes of Kuldeep Yadav. Play Kuldeep. Yeah, look यार, if you want to play 2 spinners, आप खिला दो फिर एक कुलदीप को. नहीं वॉशिंगटन या उसके ऊपर खिला दो. हाँ. वॉशिंगटन खेलेगा यार. हाँ, I Washington think खेलना हाँ चाहिए. वॉशिंगटन एंड रवि जडेजा प्ले बट यू कैन प्ले कुलदीप यादव. जडेजा तो चलो अब ऐसे नंबर 6 ही खेल रहा है. वो तो एग्जैक्टली वो दोनों जो है ना, उसको निकाल दो उससे. वो दोनों बैटिंग में जो प्रोवाइड कर हाँ. और किया है, देख लिया ना, दोनों ने सेंचुरीज मारी है, तो उनको तो नहीं अभी निकाल सकते हो आप. हाँ. बट यू कैन प्ले समवन हु will pick up wickets, you know that. Also, 22 की एवरेज अगले की यार. बिल्कुल 22 की एवरेज है. आई नो सैंपल साइज छोटा है, कोई 50 एक विकेट ही है. जो But भी है still, यार. Kuldeep Yadav is a very very good left arm wrist spinner who has a lot of control. In fact, I have never seen more control from any left arm wrist spinner than Kuldeep Yadav. और he spins it both ways. इंग्लैंड को स्पिन खेलनी नहीं आती. बिल्कुल नहीं आती. इनके 3 लोगों को खेलनी आती है. क्या कह रहा हूं मैं, बेन डकेट. हैरी ब्रूक को नहीं खेलनी हैरी आती. ब्रूक को तो बिल्कुल नहीं आती. उससे तो सीधी बॉल नहीं खेली गई थी इस मैच डकेट, में. रूट एंड स्मिथ. Duckett, Root, and Jamie Smith, those are the only 3 guys who know how to play spin. And as Saad said, कि not only is Kuldeep Yadav accurate, he can turn the ball in both directions. He has a killer wrong gun. I feel like his wrong gun is better than his conventional leg spinner. So you have to play him at some point. यार अब यहाँ पे चलो थोड़ी सी हार्ड लक ये भी हो गई शादी. आकाशदीप भी इंजर हो गया, अर्शदीप भी इंजर हो गया. मैं ट्रिपल डीप करवाना चाह रहा था. वो सारे डीप बाहर हो गए. सारे डीप बाहर हो गए हैं. कंबोज पे थोड़ा तरस आया. क्यों? Looked like he was a bit rushed, no? And I was asking my colleagues at Good Areas, मैंने कहा क्या ये 128 वाला ही बोला? वो कह रहे थे नहीं. वो कह रहे थे यार 135 करा लेता होता, but clearly he doesn't look like he was prepared for this. और कैसे हो सकता था? नहीं लेकिन अभी तो खेल रहा था, ये इंग्लैंड में ही खेल रहा था. हाँ. अभी तो खेल रहा था इंडिया इंडिया खेल के रहा था, so he लिए should और be. अच्छी खासी विकेटें ले रहा था. But पता है, पता नहीं शायद फुल फिटनेस ना हो. फिर ये भी हो सकता है हाँ, कोई ये भी हो नेग्लिजिबल हो गया हो. कीपर भी आगे आ गया था. It was quite bad. Even Gill didn't trust him a lot. ज्यादा ओवर थोड़ी कराया अंशुल को. वो wasn't impressive at all. बोझ ना बन सका वो इंग्लैंड के हाँ. ऊपर, आप ये कह सकते हो. और इंडिया के ऊपर थोड़ा कम बोझ भी ना बन सका. यार again, I'm not going to vilify debutant over here. You know, maybe he's a good player, maybe we haven't seen the best of him, right? तो उसको साइड पे कर दो. और again, देखो ऑप्शंस भी तो कम ही थी ना उनके पास, और कुछ क्या ही करते. हाँ, प्रासिद कृष्णा से बेहतर था एक नया लड़का ट्राई कर लो. At that point, I probably would have gone with that as well. So I don't blame them for that selection. And I don't even like, ठीक है, माना कि मैं करण को ही रखता, साई को ले आए हैं, कुछ इतनी कोई बड़ी चीज. मुझे सिर्फ एक चीज से इशू था, शार्दुल क्यों खेल रहा था. Should have played Kuldeep. Big issues with Shardul Thakur playing. I don't think कि यार, like, he is actually bits and pieces. No, he is. He's not Jadeja. जडेजा ने तो अब कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया ना. जडेजा ने तो वो किसी ने लिखा हुआ था संजय मंजरेकर इज अ बिट्स एंड पीसेस कमेंटेटर. ठीक है, वो तो वहां तक गेम को ले गया. रविंद्र जडेजा एंड बेन स्टोक्स आर द 2 फाइनलिस्ट ऑलराउंडर्स दैट वी हैव सीन इन टेस्ट क्रिकेट इन आवर जनरेशन. एंड नॉट इन आवर जनरेशन बट इन दिस जनरेशन. हमारी जनरेशन में तो और भी कुछ लोग थे. कैलिस था. बट यस, शार्दुल ठाकुर को खिलाना बिल्कुल नहीं बनता था.
ना आप अपनी बैटिंग लाइनअप पूरी सही तरीके से एक्सटेंड कर रहे हो, और आप अपने आप को इतनी अच्छी बॉलिंग ऑप्शन भी नहीं दे रहे जिसको आप ज्यादा ओवर्स दे सको, नहीं दिए उसको ज्यादा ओवर्स। सो आई थिंक दैट वाज स्टूपिड सिलेक्शन। लेकिन पता है अब सवाल क्या पैदा होता है मेरा, अगले मैच में ये फिट होंगे सारे सारे टूट गए हैं सारे। I kid you not, I have no idea how many people are 100% fit across both squads. 100% फिट तो कोई भी नहीं होगा। 100% fit तो कोई भी नहीं होगा, मगर अगर दोनों स्क्वाड्स को देखो हर जगह इंजरी कंसर्न्स है। What we do know is that Pant is out. Pant is out. ठीक है? For We sure. don't know whether Bumrah will play or not. I don't think he should. I really don't think he should. Jasprit Bumrah looked like a shadow of himself, man. This wasn't the guy that is an alien. अच्छा, मैंने अप अंटिल हाफ वे थ्रू जब मैंने तुम्हें ये तस्वीर भेजी थी उसके बाद वैसे मैंने स्पीड्स नोटिस नहीं की बहराम, लेकिन मैं इन लोगों को बता दूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक आया था ये जो बुमराह की पेस वाला था। इन द फर्स्ट टेस्ट आई रिमेंबर दिस, इन द फर्स्ट टेस्ट ही बोल्ड 40% of his deliveries were over 140 clicks. Yes. In the second one, it was 26%. 27% of his deliveries were over 140 clicks. So those are both good percentages. एक में यार almost every other delivery is 140 plus, और एक में 1/4. एक quarter. उसके बाद जरा बताओ। जब तक ये ग्राफिक है 0%. 0%. मैंने जहां तक देखी बुमराह की बॉलिंग तो ही वाज एवरेजिंग अराउंड लो 80s और बीच में एक आधी 85 पे चल 135 हम जब साथ बैठ के देख रहे थे, that was his highest. And you know what? Up until then. It kind of did hurt me to see him this way. Clearly, जो मुझे लगा यहाँ पे, जो हमारे सामने चीज आई है, is that he's not fit enough to play back-to-back test matches. Yeah. That's what I felt. So, is he fit enough for test cricket? Exactly. That's the question. That's the big question. Look, India don't play a 5 test match series versus everyone. It's just England and Australia. Yeah. So I don't think he can play all of those test series anymore. और वो तो अब आएंगी भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, इंग्लैंड भी हो गया, और घर पे तो जरूरी नहीं है ना हर मैच। ठीक है, वो वहां पे तो आप आराम से पिक एंड चूज कर सकते हो। वहां पे तो आप वॉशिंगटन और जडेजा और उसको कुलदीप को तो खिलाओ। Unlike मोहम्मद कैफ, I don't think he's done. अच्छा, कैफ ने ये बोल दिया? हाँ, कैफ ने बोला कि बस अब आपको शायद वो देखने को ना मिले टेस्ट क्रिकेट में। देखने को ही ना मिले? I don't think he's done. I would be surprised if he plays the next test championship side. अच्छा, वो तो मुश्किल ही लग रहा है। नेक्स्ट टेस्ट की बात करो, वो भी मुश्किल लग रहा है। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट भी मुश्किल लग रहा है। आई थिंक बेवकूफी होगी ओवल पे खिलाना। यार 3 दिन भी नहीं, क्या आज 28 है ना, 31 को शुरू है। आप ये कह सकते हो कि क्योंकि इंडिया ने इतनी बैटिंग कर ली है तो उसको वो दिन भी रेस्ट मिल गया। पता नहीं, आप फिर भी पिच पे ही होते हो ना। But यार, even if he is like at 80%, don't risk him now, I feel. Yeah, because देखो, he was visibly drained. Him and Siraj, उस बेचारे को भूल जाते हैं। सिराज तो पता नहीं कब से ओवर ही करा रहा है। हम बुमराह के ओवर गिनते हैं, सिराज बेचारे के नहीं गिनते। वो हैरी मैग्वायर को भी जाकर ओवर करा रहा होता है यार, मतलब हद हो गई है। That guy is also drained. और I saw अपने गुप्ता भाई गुप्तगू कर रहे थे ट्वीट आया कि इंडिया हैव गिवन अप। भाई गिवन अप हुआ होता ना तो मैच हार गए होते सबसे पहली बात। अच्छा, ये आ गया था? हाँ, जब बॉलिंग करा रहे थे। अच्छा। और यार, इफ योर फास्ट बॉलर्स आर विजिबली ड्रेन्ड एंड आर स्ट्रगलिंग, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो एफर्ट नहीं डाल रहे। फिजिकली ड्रेन्ड है ना भाई, उससे नहीं निकल रही 90 वाली बॉल, 140 क्लिक्स उससे हो नहीं रही। वो 85 तो मार रहा है। ये कब आया था ट्वीट? ये जल्दी आ गया था, मैं तुझे सेंड किया था। आई सेंट इट टू यू। आई वाज लाइक यार, इनमें और पाकिस्तान की मीडिया में कोई फर्क नहीं है। एंड सोशल डिड यू सेंड इट टू मी? I did send it to you. मैंने तुम्हें ये भी बात की थी, मैंने बाद में ट्वीट भी किया था कि क्रिकेट मीडिया हाउसेस इन द सबकॉन्टिनेंट डू नॉट नो हाउ टू डील विद लॉस। ये फौरन अपनी पिच फॉर्क्स लेकर निकल जाते हैं। अभी चीज हुई नहीं होती और नाइफ शार्पन हो रही होती है, जो कि यहाँ पे हुआ है। इंडिया डिड सेव द गेम। They saved the game. They clearly didn't give up, right? And over here you're saying that they've given up just because your fast bowlers look tired. यार, वो हो गए हैं टायर्ड, वो बॉलिंग कराई है उन्होंने, वो इंसान नहीं है। सिराज बेचारा कब से बॉलिंग करा रहा है? एक स्टूपिड ट्वीट। एक चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रेक मिली सिराज को बस। बाकी तो उसने लगातार बॉलिंग कराई है पूरी बीजीटी में, पूरी सीरीज के अंदर। वो क्या थक नहीं सकता? हिज बॉडी कैंट गिव इन। ये हद हो गई है। आई थिंक ही आल्सो डिजर्व्स अ बिट ऑफ रेस्ट, बट अगर बुमराह नहीं खेल रहा तो सिराज बेचारे को तो खेलना ही पड़ना है। हाँ, और ऑप्शंस भी नहीं है। हाँ ना, ऑप्शंस नहीं है। प्रासिद कृष्णा, अंशुल कंबोज। आई डोंट नो वेदर अर्शदीप इज फाइन और नॉट नाउ, और आकाशदीप। Both the Deeps, if those guys are fit now, you play them. Sure, I would. लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या? प्रासिद कृष्णा ही को आना। शार्दुल ठाकुर और कंबोज, ये बॉलिंग लाइनअप के साथ। भाई गौती भाई तो कहते हैं ना कि फिजिकल पेन एंड मेंटल पेन, नथिंग कम्स अहेड ऑफ द पेन ऑफ लूजिंग फॉर योर कंट्री। वाह, I would like to disagree, especially if I'm Jasprit Bumrah. नहीं, हम जंग लड़ने जा रहे हैं। वो तो चेस्ट थंपर है ना। ये है गौतम गंभीर। ये है, if this action was a human being, it would be गौतम गंभीर। वो तो यार लोग उसकी तारीफ कर रहे हो तो फिर भी आगे से अटैक कर रहा होता है। That guy is always in attack mode. I feel like, ये सौरभ ने मुझे बोला था, सौरभ is my colleague at Good Areas. He was like, I don't think that his facial muscles are capable
of moving in a way where he can smile. ठीक है? It's always that same political BS with Gambhir bhai. Physical pain is pain. You don't just run your bowlers into the ground like that. अगर वो नहीं है फिट उसको ना खिलाना. ये मंजन बेच कर ना खिला देना कि नहीं भाई. मंजन बोल दिए सादी. मंजन आ गया आज आ गया. आज मैं वो बंदा बन. चलो आ गया मंजन. I want to take a time out. नहीं कोई टाइम आउट नहीं है. लेकिन हाँ होता है यहाँ पे. थोड़े कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो इस तरह लगता है कि आप जंग लड़ने जा रहे हो, क्रिकेट का मैच खेलने नहीं जा रहे हो, और आपकी अगर टांग भी टूट गई हो लेकिन आपने मैदान में उतर के लोगों जाके मारना है. ये नहीं है भाई. इसको भाई अगली दफा बोलना गौती को कि आर्मी की जर्सी पहनकर आ जाए अपने प्रेसर के अंदर, क्योंकि बातें तो इसी तरह की करता है. अच्छा खैर. हाँ फिट कौन है कौन नहीं है. पंत नहीं है. पंत गया. बुमराह नहीं खेलना. बुमराह मुश्किल है ना खिलाओ, टूट जाएगा. नो क्लू अबाउट द दीप्स. आई डोंट नो आकाशदीप और अर्शदीप रिकवर किए. अच्छा जो करंट खेल रहे थे उसमें से कौन? बाकी तो ठीक है. इंडिया का और कोई नहीं है. सिराज पे मुझे सिराज आई एम रियली स्केयर्ड फॉर हिम. इंग्लैंड का स्टोक्स. इंग्लैंड का स्टोक्स पता नहीं किस तरह खड़ा है इस वक्त, मुझे तो समझ नहीं आती. और आर्चर का कोई पता नहीं. Can he play 3 test matches? I think Jofra might not play the next one क्योंकि Mark Wood should be fit for the Oval. यार अच्छा by the way मैंने कहीं नहीं पढ़ा. ये तुम कह रहे हो कहाँ पढ़ा? I've read everywhere. मैंने कहीं नहीं पढ़ा. मैंने बल्कि ये सीरीज से पहले ही पढ़ा था कि मार्क वुड शुड बी फिट फॉर द 5th टेस्ट. सो नहीं तो वो कितनी लंबी इंजरी थी मार्क वुड की, वो भी देखना पड़ेगा. बेचारे की भी इसी तरह का सीन है यार हमेशा. अगर वो अभी फिट हुआ है, कुछ खेल रहा है नहीं खेल रहा, डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट में डाल दोगे वो भी गलती है. He is always injured. वो भी जाती है बेचारे के साथ. नहीं मगर पता है एक ही टेस्ट है, उसके बाद उसने टेस्ट नहीं खेला. बट देन अगेन बेराम अगर आप पहला मैच ही फिट होगी यही कर रहे हो तो if they were saying that he will be ready for the 5th test, क्या पता वो फिट हो गया और अभी वो ट्रेन कर रहा है. हो सकता है. समझ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है. I feel like he should probably come in. एक आधी काउंटी गेम या कोई भी जो भी चल रही है T20 गेम खेल अब नहीं हो सकता. लेकिन अगर फिट हो जाता तो एक आधी रन इन आके फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में आता. अब जोफ्रा was bowling 128 towards the end of this test. He was done too. So Jofra was completely done. You don't want to risk him either. आगे Ashes भी आनी है, जोफ्रा जरूरी है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि you take a punt with Mark Wood. Just because England need an express pacer, we know that. Their best bowler in this entire series has been Ben Stokes, right? और वो भी बेचारा पता नहीं करा सकता कि नहीं करा सकता. उसकी वजह समझ नहीं आती यार. तू फिर आगे बैटिंग करने अगले दिन आ जा. कोई पता नहीं है हैमी भी उसका चीज स्ट्रिंग की तरह लटक रहा है. किन चीजों से उसकी नीज जो है वो जुड़े हुए हैं. नीज एंड हैमस्ट्रिंग और क्रैम्प्स पड़ने. इट्स नॉट कार्टिलेज, आई टेल यू दैट. कार्टिलेज से नहीं जुड़े. उसके बाद शोल्डर में भी मसले हो गए. शोल्डर में मसले हो गए. आई मीन हिज बॉडी हैड गिवन अप बट ही हैडंट. वो बंदा पता नहीं गिव अप कभी भी नहीं करता. कर दिया था उसने जब हैंडशेक ऑफ किया. तब तो कर दिया था. बट या आई मीन लुक, Stokes and Archer are the major concerns, I feel. But let's not forget Carson and Wokes. Chris Wokes. These guys have played all 4 test matches, bro. ये बेचारे भी तो थक सकते हैं ना. कार्स खास तौर पे वोक्स चलो इतनी तेज नहीं करता. हाँ मैं वही कह रहा था. कार्स थक सकता है. वोक्स मुझे लगता है ठीक ही होना चाहिए. I feel like Bryden's Cars will be quite tired. देखो वोक्स की जहां तक बात है ना यार, आई मीन अगर वोक्स ऐसा बॉलर भी 5 टेस्ट नहीं खेल सकता तो फिर क्या हो गया है क्रिकेट को यार. थोड़ा बुड्ढा भी है. But then again bro, I think वोक्स का फिर इतना कंसर्न नहीं है. मैं तो वैसे उसको खैर जहाँ मैं कह रहा हूँ उसको वैसे ही ना खिलाऊं. अगले ने वो 0 for 2 भी किया था और पंत को इंजर किया. I mean you have to look at it that way. I feel. But I mean those guys would be tired as well. Hopefully Gus Atkinson is fit by now. I don't know what's up with Gus Atkinson, right? Squad में आ गया था लेकिन को निकाल दिया था स्क्वाड से. अभी तो खैर 5th टेस्ट का अनाउंस. Where the hell is Matthew Potts? I don't know. मैं चेक कर लूं क्या पता इनका स्क्वाड आई गया. ये हमेशा करता होता है इंग्लैंड हमारे साथ. ऑली रॉबिन्सन खत्म. ठीक है उसकी पेस नहीं थी. Potts भी यार, I checked his recent numbers, he hadn't been doing well. For that matter, Gus Atkinson hadn't been doing well either in recent times, right? Zimbabwe वाली गेम में भी वो कोई इतना खास नहीं था. So yeah, England के पास कोई आसान यहाँ पे रास्ता नहीं है with their bowlers all tired and their captain barely standing. I don't even know how he does it, man. कसम से. Yeah, it's incredible really. 5th test is going to be interesting in the sense के सारे 70-75% फिट होंगे और खेल रहे होंगे और पता नहीं क्या क्रिकेट हो रही होगी. Absolutely. मैं एक दफा देख लूं यार इंग्लैंड ने नहीं कुछ आ गया स्क्वाड. यार सादी तू ऐसे पता है बड़ा स्मार्ट हो गया इन मामलों में. पता है बेन स्टोक्स, क्रॉली, डकेट, पोप, बेथेल, रूड, ब्रोक, स्मिथ, लियम डॉसन, जेमी ओवर्टन इज इन. जेमी ओवर्टन इज इन. चल क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, गस एटकिंसन, Archer and Josh Tongue. No Mark Wood. They've brought in Jamie Overton. Look, the bowling is light. The bowlers are tired.
Or I feel like India have the momentum after the draw. Yeah, So they do. England should be fearful over here कि ये series जो जीती हुई थी इस वाले टेस्ट मैच में, जो आपको टेस्ट मैच I think they bottled it. They did bottle it. They dropped all those catches, right? Yeah. They dropped 4. आ जाए जरा मैच पे आ जाए. हाँ, catches ही गिनवा लेता तुझे. In the first inning, Sai Sudarshan was dropped by Jamie Smith down the leg side. वो D's पे था सिर्फ. He ends up scoring 61. ठीक है. उसके बाद in the second innings, second bowling innings for England, Shubman Gill was dropped twice. Yeah. एक दफा 46 पे था वो, and Dawson dropped him, and then later on Ollie Pope dropped him when he was on 81. And then after all of that, once they got him out, Ravi Jadeja was dropped on the first ball by Joe Root. Yes, sir. और आप ये मैच अगर एंड में नहीं जीत सके तो those dropped catches have had a role to play. Have had a role. बिल्कुल, to play. इसमें For आप sure. you can't For look sure. past all of that stuff. India on the other hand only dropped one catch which was a very difficult catch. वो जो अंशुल कंबोज की bowling पे जुरेल आगे आया हुआ था और Pope was on 48 और वो under edge drop हुई है. That's barely even a dropped catch. That's how tough that was. Even though DK in the commentary box was saying that can be taken. Can be taken तो हो सकता है कुछ भी. Anything can be taken. So I feel like England really suffered because of those dropped catches. But then again, you have to give credit to India for their application in their second. I think they batting were innings. brilliant. I think they were brilliant. यार 0 for 2 जब होए तो मेरा जो कॉलीग है इशित हमारा ऑडियो इंजीनियर एट गुड एरियाज उसने कहा ये मैच आज ही खत्म हो जाएगा. मुझे भी यही लग रहा था. मैं इशित तो कह रहा हूँ कि इशित यार मैं इस वक्त लाहौर आया हूँ तो ये नहीं हो सकता अभी. दिस कैंट वर्क. मुझे भी यही लग रहा था कि खत्म, डन एंड डस्टेड. देन उसके बाद यार जो वो बैटिंग करना केएल राहुल, शुभमन गिल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, 300s, 190, crazy man. Also one thing that a lot of people might not talk about but I think we should is that there was a bit of a visibility issue. कितने लोगों को तो बॉल ही नजर नहीं आ रही थी फील्डिंग में. ये भी एक बकवास थी ओल्ड ट्रैफर्ड. अच्छा खैर, I think let's start with Big Ben. अच्छा, बिग बेन से शुरू करें. से बात करो क्योंकि यार क्या was he player of the match? He was. He should be. He right? was. Because that man put in like 3 shifts in the same test match, right? First he takes 5 for 72. Fifer, his first test fifer in 8 years, Ben Stokes, ठीक है, and he's been exceptional in the series. He has by and large been England's best bowler. Long ass spells, bro. आता है वो, उतरता ही नहीं है उसके बाद. उतरता ही नहीं है. 10-10 ओवर के स्पेल करा रहा है भाई. तेरे गोडे नहीं काम करते. अब तो हैमस्ट्रिंग भी नहीं कर रहा था, bro. हैमस्ट्रिंग भी काम नहीं करता. How many overs did he deliver? यार देख लेते हैं. 24. He delivers 24 overs, takes 5 for 72, delivers those long ass spells. In the second bowling innings for England, that man is done. His body has given up. He somehow still comes on and prizes out KL Rahul's wicket. Yeah. पता नहीं कैसे. टूटा हुआ Ben Stokes. फिर 11 ओवर करवाया. Jared said that even in a coma, he's good for a twofer. You know, like that's Ben Stokes for you. He is the ultimate competitor. He does not give up. That's the right word. Ultimate competitor. He has complete disregard for his body and his knees. उसको नहीं फिक्र. And his nuts as well. And his nuts, man, keeps getting hit in the nuts. इस दफा तो निशान भी छोड़ मैंने देखा है Jared Kimmer ने जो लिखा हुआ. I love that. The only other person who gets hit in the nuts with this frequency is Marnus Labuschagne. I think उसको भी बहुत लगती है. मुझे लगता है Stokes को ज़्यादा लगती है. एक टाइम पे रूट को लगती थी बड़ी. रूट को बहुत ज़्यादा तो मगर recent times में Stokes और Marnie बार-बार खाते हैं यहाँ पे बॉल. Right in the baby Micah. Yes sir. Yeah. अच्छा खैर वो तो लग गई ना बैटिंग के साथ, bro. अच्छा बैटिंग में भी ही रिटायर्ड हर्ट. Yeah. 66 पे बैटिंग कर रहा था, ही रिटायर्ड हर्ट. क्रैम्पस मैक्सिमस हो गए थे. क्रैम्पस मैक्सिमस हो गया तो मैं डर गया था. हाँ. और पता है क्लियरली और भी इश्यूज चल रहे हैं उसकी बॉडी में. Anyway, he comes back same day. Vokes बोल्ड हुआ जब सिराज पे वापस आया स्टोक्सी. He ends up scoring his first 100 for England in Test cricket in 2 years. ठीक है, वो एशेज वाला 100 था इससे पहले. लेकिन फिर मेरा आर्गुमेंट यहाँ पे अगर सारे ही 100 मार रहे तो ये भी 100 मार. मगर इसका 141 था तो थोड़ा देखो 41 तो शर्दुल भी मार गया था, bro. यार शादी तो बड़ा कमीना है. ज्यादा बुरी गाली निकलने वाली थी मगर I reined myself in. Look, after you have taken 5 for 72, bowling 24 overs, उसके बाद आकर 141 मारना is a feat. It is a feat. बेशक जितना भी बड़ा मैं तंग कर रहा था. जितना भी बड़ा फ्लैट डेक हो, because he's an all-rounder, because he's like in the game so frequently. I feel like it was a Herculean effort by Ben Stokes. And उसके बाद like I said वापस आकर फिर KL राहुल की भी crucial time में विकेट निकलती, तब कुछ भी हो सकता था. He deserves his flowers. People will be pissed at him, and you are allowed to critique his behavior. That is completely on. मुझे भी वो वाली बात अच्छी नहीं लगी थी जो इसने जडेजा को बोली थी. उसके अलावा तो मुझे कोई मसला नहीं था. That all things said and done, if he's shaken their hands at the end, यार ये किस्सा मुकाओ. He shook Jared's hand. अच्छा. Jared was in the hallway. These guys were coming. Jared held back the door, and then he turns back, comes back a meter, and he shakes his hand and he says, "How are you?" Maybe he looked at the nuts video or read the nuts piece and he was like, ये समझ गया मेरी परेशानियां समझ गया ये boy. यार early candidate for player of the series. हाँ. Yeah. पिछले लॉर्ड वाले टेस्ट में player of the match. दो तीन है. He's been England's best bowler throughout. 2-3 लगते हैं. Now he's got runs. Yeah, he's got runs.
रन्स वर लैकिंग, रन्स आ गए। Yeah. लेकिन स्टोक्स का एक जो हम दोनों चीज बात कर रहे थे कि बेसबॉल एरा में सिर्फ एक बैटर है जो बेसबॉल नहीं करता, and that's Ben Stokes. उस फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल बेसबॉल नहीं किया। आई कैन थिंक ऑफ दैट ऑस्ट्रेलिया टाइम, उसमें मारा था। उससे पहले भी एक मैच में शायद ऑस्ट्रेलिया को मारा था। हमें शायद मारा था इधर आके बहुत पाकिस्तान ज्यादा। में जितना थोड़ी देर बैटिंग की उसने वो मार ही रहा था। बट इफ यू लुक एट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिज करियर इन द बेसबॉल एरा, ही हैजंट particularly baseball. And prior to the baseball era, he was baseballing he was the basically. prototype. हाँ। वो आकर ठोकता था बस। Probably उसने शायद ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है कि यार तुम लोग मारो, I'll be there to stick around. For starter, Ben Stokes should just move himself one spot down the order. हाँ. Jamie Smith should bat ahead of him because he can. And Stokes at this point in his career, I know उसने 141 मारा है, but I think he is a better bowler now. He is a better bowler. Yeah, especially in these conditions, right? I know अगर एशिया में जाएगा तो फिर better batter ही होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या उसने कितने उसने over क्या कराने ही हैं। बॉलिंग करवा लेगा हाँ, वहाँ पे। तो उस कोई लिहाज पता से- नहीं ब्रो इसका वैसे। देखो, Never doubt Big Ben. It's not like Ben Stokes doesn't have holes in his game. His spin game isn't great. No. वो वही वो तो- spam कर रहा होता है, reverse sweep, और लग रहा होता अभी गया। मगर in this particular innings he was very masterful and end with attack भी किया। Yeah, तो मैं end with दिखाया one, उसने, हाँ। सही है। I मुझे think ही करके दिखा दिया I उसने। think he is one of those talismanic figures. I know Root is probably England's best cricketer in this team, but Stokes is that kind of figure कि अगर इसको टीम से निकाल दो तो ये टीम आधी हो जाती है। ऐसे ही। क्योंकि he not only brings bowling and batting to the table, he brings pushes his everything team to hard. He's the captain. He's setting up those doggy slips. You know, like Doggy हाँ, बहुत इसकी funky fields का तो मैं बहुत बड़ी देर से fan हूँ। डॉगी स्लिप्स। Umbrella fields और ये और अच्छा वो। मुझे बताओ क्या इसका कुछ नहीं किया इसका Stokes एक कोई ने। two leg steps overlap field, mid on long on। तुम्हें याद है इसका कोई ridiculous stat भी था? He's one of the few players Botham और उनके साथ क्या था? so Pfeiffer वो ये- and 100 क्या था? हाँ, उसमें ये था कि what was it, man? मैं भूल ही गया हूँ। I can't quite remember it. It was like runs and wickets का था शायद। कि इतने runs किए हों, इतनी wickets की हों। अब मैं ये कहाँ से But the ढूंढूं? other guys were Botham, Sobers and Callis. अब I don't remember what that exact stat was. तुम कह सही रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही बैठा हाँ था। मुझे भी नहीं याद। हम दोनों साथ देख रहे थे। Look, he, like I said, him and Jadeja, those two guys stand out as the best all-rounders of this current era or generation. Yes. And it also depends on what you value more. कि आप किसको बोलो बेस्ट, दोनों की arguments हैं, Yeah. ठीक है। Stokes has the clutch factor, Jadeja does as well, but Stokes का थोड़ा clutch ultra pro max वाला है। And वो फास्ट बॉलर है, वो मुझे spinner लगता है उन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आया था ना लास्ट गेम में, जो मैंने पॉइंट आउट कि वो किया था स्टोक्स आकर मार देता है उस कि सिचुएशन में। मतलब वो जो मैच विनिंग एबिलिटी है ना, वो क्लचनेस, वो आई थिंक स्टोक्स वहां पे जीता, वरना मुझे That लगता है said, I don't think Jadeja was doing something wrong. I think he- वो खड़ा हुआ था, वो जिता, वो तो हार्ड लक हो गई सिराज रॉन्ग के वाली साथ। बात नहीं होती ब्रो। सिराज से hard luck हो गई, वरना उसका plan चल गया था। आई थिंक जडेजा इज क्लच एज वेल। इट्स जस्ट दैट वो कुछ प्लेयर्स होते हैं और वो जडेजा की फॉल्ट नहीं है, वो किसी की भी फॉल्ट नहीं होती। देयर जस्ट एट दैट मोमेंट जो है ना, आपको पता होता है कि ये वाला प्लेयर जो है ना यहाँ से जितवा देगा मैच, एंड स्टोक्स इज वन ऑफ देम मेरे लिहाज से। हाँ, हाँ। और वो बहुत कम होते हैं। दैट्स अ मतलब रेयर कमोडिटी होती है It's a वो। rare breed of हाँ, cricketer, it is. right? और पता है जडेजा का ये कि ही इज अ ब्रिलियंट ऑलराउंड क्रिकेटर। अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखो जडेजा के बेहतर है, उस सारी आर्गुमेंट में वो जीत हाँ। जाता है। बट स्टोक्स, दिस गाय इज पार्ट मशीन पार्ट मैजिक। ऐसे ही व्हाट डू यू डू अबाउट हिम, राइट? पार्ट मशीन पार्ट मैजिक। हाँ, that is him. That Yeah, describes that him. is And him. इसलिए मैं बार-बार उसके सारे नॉक्स गिनवाता हूँ। हेडिंगली, हाँ। ODI वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, you know, You there are just plenty. know it कि अभी वहां से लॉर्ड्स में परफॉर्मेंस। हाँ, कि बस एक प्लेयर है जो आपको जितवा देगा। Yes. और वो बंदा है, हाँ, he is that वो guy. तो- I know a lot of people get like worked up on Ben Stokes के, oh he's overrated, this that the other. नहीं don't- यार, I don't I think- think he's a special cricketer. He is a special मुझे तो बहुत पसंद है। I love him. I आप love him. कुछ उसकी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं, आप- मगर the cricketer you have to love. I think अगर आप एबिलिटीज पे कंपैरिजन कर रहे होते हो ना, तो शायद हाँ कहीं पे वो लैग कर रहा होगा कह स्टोक्स। रहा हूँ ना, वो हाँ स्पिन गेम फारिग। हाँ नहीं, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार ये बैटर इतना अच्छा नहीं है, ये वाला बैटर उससे That बेहतर है, ये said, बॉलर यार, इतना अच्छा it's नहीं। not like Jadeja हाँ। doesn't have holes in his game. यार ऐसा कोई क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ जिसके होल्स नहीं है, हाँ, बट वो जो है ना, महून की हंसी निकल आई है। वो तो ऐसा कोई बंदा नहीं पैदा हुआ जिसके होल्स नहीं। चार होल्स के साथ तो हम आते हैं शादी। यार पांच कहाँ ले गए हो यार? Five holes. स्टोक्स इस तरह का प्लेयर है, या होते हैं। अब
फुटबॉल की बात कर लो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन ऑफ देम, राइट? गैरेथ बेल नहीं, चलो रोनाल्डो, रैमोस नहीं, गैरेथ बेल के नंबर्स उस तरह नहीं है जो मगर वो मैचेस जिता गया है। मैं इसलिए कंपैरिजन मैं रैमोस की बात कर रहा था, मतलब क्लच ब्रो, क्लच, मतलब वो वाले नंबर्स नहीं है उसके। आप कहोगे कि यार डिफेंस में उसके मगर हेडर करवाना है इंजरी टाइम में, आपने मैच जितवाना है तो आपको चाहिए रैमोस, वो आकर ठोक देगा वो, ये चीज होती है जो डिफरेंस मेकर होते हैं। ठीक करे, एंड आई फील लाइक जहां पे इतनी तनकीद हो गई है बेचारे की, वो थोड़े फ्लावर्स भी डिजर्व करते हैं यार, और एंड में उसने हाथ मिलाया है, तो मेरे बॉय को ज्यादा बदतमीजी मत करना स्टोक्स के साथ। अच्छा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओह, बर्दाश्त नहीं करोगे? हाँ, अच्छा, मगर उस बात से मैं आपसे हर किसी से एग्री करूंगा कि ये जो बना देते हैं ना सीन के आपने हमारी वाली चीज नहीं की तो आप गलत हो, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। वो तो है, मुझे इंग्लिश एंटाइटलमेंट वो तो है, नजर आती है, वो तो बेशक है, बेशक है, मगर है स्टोक्स मेरा जानी भाई। अच्छा, आप लोग भी जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं, इसने सेगवे दे दिए, मैं आ नहीं रहा था वहां पे, लेकिन जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बनने के लिए जहां पे आप बेनाम से, मेरे से, माहिन से, हर एक से बात कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है, वो बनने के लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो प्रो स्पोर्ट्स या मुझे डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे। 1500 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। उसके अलावा हमारे पास और क्या तरीके हैं बराम? या आई मीन सबसे पहले तो आई डोंट नो इफ यू मेंशन दिस और नॉट, मैं जोन आउट किया हुआ था, मगर डिस्कॉर्ड चैनल सबके लिए अवेलेबल है। If you want to join the Jani's chat, you can talk to Saad Mahoon and myself exclusively. Baki yaar, as you all know, even if you don't have online banking and live under a rock, Saad and I and Mahoon have got you sorted. We live in Islamabad and our office and studio situated in the E113 Markaz. So come seek us out, or move maro 1500 rupees hamare, and we will make you Jani for 1 month per 1500 payment. And if you give the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey, not a knockoff, कोई भी sport, कोई भी team, international, domestic, doesn't matter, authentic sports jersey पे 6 months के लिए आपको Jani बना देंगे. And I highly encourage you to become one. As you all know, Saad, Mahoon and I, we are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports coverage and cricket coverage in Pakistan. Enough of this masaredar khabrein, sensationalism and sansani-kheziyan. We are promoting intelligent sports/cricket discourse. आ जाओ आगे, जानी बनो हमारे। It's an inclusive community. Come become a part of the family. अच्छा जी, आप किस पे आना है bro? यार हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुम गिनवा रहे थे चीजें, तो Jaiswal got a 50, KL Rahul got that 90 and 46. उसके बाद भाई Gill eventually gets his done. Stokes 141, Root 150, Crawley 84, Duckett 94, Pope 78, 71. वॉशिंगटन और जडेजा ने भी एंड में 100 ठोक दिए हैं। साई सुदर्शन ने 50 ठोक दिए। किसने नहीं किया कुछ? 2 लोग हैं, हैरी ब्रुकी और जेमी स्मिथ। और हैरी ब्रुकी तो आउट भी गंदा हुआ। सो this was a shit game for just 2 batters, Harry Brook and Jamie Smith. Even Shardul gets 41, right? So I mean, what was worse, Shardul's 41 or Pope 71? I think that is the $1 million question right now over here. But obviously we have to go over each of these guys briefly. एक बंदे पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना है, ब्रुक, जो रूट। मैं समझा इसकी बात, ब्रुक की क्या बात करनी है? मैं वही कह रहा हूँ, गंदा आउट हुआ है, वही वाला ब्रुक का वही मसला है भाई। मैं तभी इसको जनरेशनल मानूंगा when he fixes spin game. मुझे तो सीधी बॉल पे स्टंप हुआ है, फ्लैट डेक्स पे मारता है। मैं और साथ थे, मैंने कहा था यार ये इससे नहीं हो पाएगा। नहीं, फ्लैट डेक्स पे मारता है। हाँ। वैसे मैंने कोई परफॉर्मेंस ऐसा देखी नहीं उसके आउटसाइड ऑफ दैट। रूट भी स्पिन पे आउट हुआ, but that was a brilliant ball by Jadeja, right? ये किस नथिंग बॉल पे आउट हुआ है, स्टंप हुआ है हैरी ब्रुकी। सो इसको ये फिक्स करना पड़ेगा, तब मैं इसको फिर वो जायसवाल और उस वाले लेवल पे मान सकता हूँ। जायसवाल ही है उस लेवल पे, या। अच्छा जी। I really love Harry Brook. He could fix these things. He could become generational, but right now for me he isn't. That's as simple as that. बात करते हैं जो रूट की। Joe Root, bro. Joe Root, yaar, what a guy. Living legend. Yes, sir. He overtook Ricky Ponting's test tally to become the second highest scorer in the format in this test match. He also overtook Dravid and Callis in the same breath. Yeah. ठीक है. And कुछ तो मैं इसके records बता देता हूँ. जी, मैं सुनना चाह रहा हूँ. Yeah, he has now scored 38 test hundreds, Sadi. ठीक है, and that's a lot. 21 of those test hundreds have come since the start of 2021. 4 सालों में. 5. 21, 22, 23, 24 और अब 4.5 सालों में 4.5 years 2100 लोगों के करियर में नहीं होते थे यार। मतलब सोचो तुम इस बात। किस पे शेड थ्रो कर दिया तुमने? सारी पाकिस्तान पे। नहीं, हर उस क्रिकेटर पे जो 21 नहीं कर पाया। शेड की बात नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि टू स्कोर 2100s is a feat in itself and he scored them in 4.5 years. And इसका एक कन्वर्जन रेट का मसला होता था।
people used to say कि Joe Root great batter but can't convert. Yeah. Scores all of these 50s, doesn't get those 100s. ये लो फिर हाँ. 21 मुंह पे. उस पॉइंट तक इसके पूरे करियर में 1700s थे. पिछले 4.5 सालों में 4.5 years he scored 21 tons. So he has undoubtedly been the best test batter of the 2020s for me. यार I don't think there's a debate over here. होनी भी नहीं चाहिए. और पिछले वाले 2010s वाले decade में Steve Smith है. Undoubtedly. Yeah, because you can't replicate Smith's numbers from that previous decade. I know बहुत superstars खेले हैं, ठीक है, मगर Smith एक फर्क लेवल पे चल रहा था. और इस वाली half decade में Root है वो बंदा. He's that guy. Yeah. He's been absolutely brilliant. You can't deny the numbers. No, you cannot. And honestly, like versus India's record becomes even more spectacular now. 1200s now. 12 out of 38. That's nearly 1/3 of his hundreds have come versus India in Test cricket. He also ends up scoring 150, and this was his 16th score of 150 and above in Test cricket. तो मतलब कि 38 में से 16, which is also high. Yeah. ठीक है. उसके बाद यार, I mean, if you think about it, he has got every opportunity now to overtake Sachin if he wants to. Again, ये वही वाली बात आ जाती है. What does he value? Does he value that milestone or not? If he does value that milestone, he can go and get it. He can go and get it. Man, I've done the math. Saadi, I've done the complete math. अच्छा math हो रही है. मैंने crazy math कर ओ बताओ फिर. ठीक है. अच्छा जी. So Joe Root is roughly 2,500 runs short of Sachin's test run tally. Okay. And this cycle, the remainder of this cycle, features 17 more test matches for England. Let's suppose he plays all of those 17 test matches. Okay. And let's assume arbitrarily, even though मैं हल्का number बोल रहा हूँ, but let's assume England played 20 test matches in the next cycle. होंगे ज़्यादा? मैंने 20 गिन लिए. 37 हो गए. 37 हो गए. 2,500 runs, 37 test matches. Joe Root needs to just score 68 runs per test. So theoretically, he can even experience a drop in form. बिल्कुल drop ना हो जाए मगर 68 in a test match. हाँ, मतलब कि he could be 34 अगर तो दोनों innings खेल रहे थे. आप जब कर रहे होते तो सबको रखते हो ना. He can definitely get, like, if he plays every single game in this cycle and the next, not only can he get close to Sachin, he could very well overtake him easily. क्योंकि ये मैंने numbers आपके सामने रख दी हैं. अभी तो वो 85 टेस्ट रन्स पर गेम एवरेज कर रहा है. एवरेज नहीं, वो उसका मीन ये बनता है. ठीक है, एवरेज में तो डिसमिसल आ जाता है ना. ये मीन रन्स अगर 37 टेस्ट मैचेस में दोनों इनिंग्स खेलता है, ही नीड्स टू स्कोर 34 पर इनिंग्स. यस, एंड यू नो व्हाट, पीपल वर सेइंग एशेस आ रहा है ये वो. बाय दिस मैथ ही नीड्स टू स्कोर 350 रन्स इन दोस 5 टेस्ट्स एंड ही इज गुड, ही इज ऑन ट्रैक. सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स ओवर हियर नाउ. हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम तो मल्डर के 400 की बात कर रहे थे. अगेन सेम सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट कल्चर. साद एंड आई बोथ लाइक माइलस्टोन्स. we're not going to be or pretend otherwise. ठीक है. Now 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पे which will determine whether or not Joe Root can get there. Sorry. Personal drive. हाँ, personal drive is obviously one of them. क्योंकि आपको पता है कि we see this a lot from cricketers who are not from the subcontinent. One fine day they'll wake up and they'll be like, you know what, I've had enough. मैंने subcontinent से भी देख ही लिया. अब देख लिया हमने, कोहली देख लिया, धोनी देख लिया, right? We've seen it. ऐसी बात नहीं, मगर generally यहाँ पे अभी भी थोड़ी क्रिकेट बाकी होती है ना. अभी भी यासिर शाह is contemplating retiring from international cricket. Exactly. I don't think Moeen Khan ever retired. नहीं, इस तरह तो बहुत है. वो तो अनाउंस नहीं किया. आई डोंट थिंक रज़ाक ने भी किया. मोइन खान में एंड तक बहुत ज्यादा क्रिकेट बाकी थी भाई. मलिक, हाँ, मलिक को देख लो, अभी तक चल रहा है वो. उसने क्या कहा था? When you're done, but I'm not done yet. Yeah. When you're done, you know you're done, but I'm not done yet. ठीक है, तो वो I'm not saying कि उसको करना चाहिए रिटायर, उसकी अपनी मर्जी है. लेकिन कंपैरिजन देखो. Alistair Cook को देख लो, ग्रेम स्मिथ को देख लो. These guys retired in their early 30s, man. So there's every chance that one fine day Joe Root wakes up and he's like, you know what? उस तरह की फील नहीं आ रही मुझे. I'm not in love with the sport anymore. जो कि मुझे वैसे लग नहीं रहा केस. मुझे भी नहीं लग रहा, because he's just that good, right? और उसके बाद इंग्लैंड के पास कोई कवर नहीं. हाँ, it's not like they have a ready-made replacement. कोई कवर नहीं. He gets to probably retire on his own terms. और लोग कहेंगे जिमी को भी नहीं करने दिया. जिमी फास्ट बॉलर था, वो obsessed है एशेस से. वो एशेस का सोचने लग गए. उस चक्कर में उसको फोर्स कर दिया रिटायरमेंट के लिए. जो रूट का वो वाला सीन नहीं है. He's a batter. He's a number 4 batter. He's been, at least मेरी जिंदगी में, the best English batter that I've seen him with my own eyes. हाँ, इसमें तो कोई डाउट है. I wasn't born जब हॉब्स खेल रहा था, हटन खेल रहा था, सटक्लिफ, डब्ल्यूजी ग्रेस. आई डोंट थिंक आप लोग भी बॉर्न नहीं होंगे उस टाइम पे. शायद ये लोग उससे बेहतर हो, मुझे नहीं पता, मगर मेरी जिंदगी में तो आई डोंट नो ब्रो. वो भी क्रिकेट भी इवॉल्व होती रही है. और क्या किस तरह आप एरास कैसे कंपैरिजन कर रहे हो? At least a few those guys like Hobbs and Sutcliffe were openers and are averaging 50 plus. वो चीज बन जाती है. Depends on the playing conditions as well. Exactly. क्या हो रहा था वो हमें नहीं पता ना. It's dependent on a lot of things. मगर मेरी जिंदगी में I have not seen a finer batter from England than Joe Root. Joseph. कौन
सा रूट? पता नहीं कुछ है इसका। जो रूट, हाँ जो रूट काफी था। अच्छा, तो खैर एक चीज हो गई ड्राइव, फिर दूसरी चीज हो गई वैल्यू सिस्टम। Maybe he doesn't give a fuck about the milestone. You know, that could also happen. He could or he couldn't. ये उसके ऊपर है, जो रूट ही आपको बता सकता है। That's two things, drive, value. तीसरी चीज, injury. He could get injured. I know he hasn't been injured much. I think he's only missed 2 test matches for England since he's debuted. Freak injury भी हो सकती है। Freak injury भी हो सकती है, फील्डिंग करते हुए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंकल मुड़ सकता है, मुड़ने लगा था, बॉल के ऊपर ट्रिप कर गया, बॉल के ऊपर ट्रिप कर गया, कुछ भी हो सकता है, इंजरी मरवा सकती है उसको। चौथी चीज फॉर्म, एंड आई डोंट थिंक दैट मैटर्स एनीमोर, बिकॉज़ अभी आपको बताया है 34 रन्स पर इनिंग्स, नॉट इवन दैट। हाँ, मतलब 34 रन्स पर इनिंग्स, इसलिए up until the next cycle अगर आपके पास 20 इसलिए कह सकते हैं ना कि there will be test matches in which he bats once. There will be test matches जिसमें वो 150 मार देगा तो वो ऑलरेडी नीचे आ जाएगी। Exactly. So I feel like if he needs a mean of 68 runs per test for 37 tests, that's very doable. He can get there even with a drop of form. Now it's up to him and injury whether or not he wants to get there. वो उसकी मर्जी है, वो देखी जाएगी कि होता या नहीं होता। But पता है अगला साइकिल तो खेल सकता है। He's 34 right now. He could play the next cycle, and if he plays the next cycle, he could get there. और अभी जिस रेट पे वो रन स्कोर कर रहा है, he could get there quicker as well. अच्छा, होगी रूट की बात। हाँ, और तो कुछ नहीं रहेगा। मेरा तो फेवरेट है, and as I said, living legend. You got to respect the guy. अच्छा, उसके बाद आप किस पे आना है? बल्कि एक और आखिरी बात कर बोल लो। तुमसे मैं बात कर रहा था। Can you think of a more textbook player, correct player than Joe Root these days? Currently? नहीं है ना यार। You brought up the name of Kane Williamson, but I think Root is he's the only guy who I can think of other than Root, and I think Root बेहतर है। अब लोग कहेंगे कि विलियमसन ज्यादा खेला नहीं, उसका रिकॉर्ड बेहतर है। यार ये भी तो देखो, जो ज्यादा खेलता है वो ज्यादा खेलकर भी अच्छा हुआ है। लेकिन विलियमसन, it's been a while since I've seen him in Test cricket, bro. Also यार रूट ने देखो, चलो ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे ही रन्स किए मगर किए हैं, इंडिया को बहुत मारा, उसने अच्छी टीमों को बहुत। चलो अब पता चलेगा इसका एशेस में, क्योंकि वो एक है इसके करियर पे ना क्वेश्चन मार्क के। ऑस्ट्रेलिया में वो इतना अच्छा नहीं है। That's one thing that his legacy does not have yet. He needs to score runs in Australia. सचिन से लोग जो कंपेयर करते हैं, सचिन ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े रन्स बहुत मारे, सही है। और सचिन की longevity वाला फैक्टर भी बहुत ज्यादा। To be good for 24 years from age 16 to 40 and play 200 test matches on its own is a feat. वो आप इसलिए मेरे ख्याल से that's the one factor जिसमें मैं कहता हूँ नहीं यार सचिन ही बेस्ट since Bradman। इतना तो Steve Smith was there in the conversation and then he dropped off. तो अब मेरे लिए सचिन ही नंबर 2 पे आता है ब्रैडमैन के बाद। Anyway, यही बात करनी थी मैंने। आगे चलें। चलो किस पे चलें? 2 सेंचुरियंस डिस्कस हो गए हैं, तुम अगले सेंचुरियन पे आ जाओ। गेल पे आ जाए। गेल पे आ जाओ। शुभमन McGillicuddy। यार 400s on this tour. He has become the 3rd captain ever of any team to score 400s in a single series. It's crazy. पता है दूसरे दोनों कौन है? Don Bradman। ठीक है। And then Sunny G बैठे हुए इस लिस्ट में। So he has become the 3rd now. Shubman Gill, यार, I feel like this demotion to number 4 has worked wonders for him. And ठीक है, it was a chancey knock. He was dropped on 46 by Liam Dawson. He was dropped on 81 by Ollie Pope. But ultimately, he scores that 100. He's scored 4 different tons in this series, so you've got to appreciate the guy, and it's been a very strong start. और थोड़ी क्रिटिसिज्म अपनी कम करो। मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ गिल पे जो क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं ना इंडियन फैंस। उसने थोड़ी कप्तानी में ये गलती की कि वॉशिंगटन को बहुत लेट लाया। मैं ये मान सकता हूँ। पता है ना केन उसकी पहली सीरीज है यार, ये नहीं है कि गलतियां तो करेगा। You can't expect him to be the best captain. अभी तो वो सीखेगा, बेहतर होगा। And you have pigeonholed him as this long-term captain for India and supposedly in white ball cricket. अब देखते हैं वो क्या होता है दूसरी जगहों पे। अगर टेस्ट में उस पे भरोसा किया तो रखो और look at his record. There is no correlation between batting well and being a captain, I feel. But सिचुएशन देखो, इतने बड़े बड़े स्टार्स रिटायर कर गए, प्रेशर इंग्लैंड गए जा रहे हो, जितनी भी फ्लैट ऑन डेक्स। ये फर्स्ट असाइनमेंट एज टेस्ट कैप्टन। बाकी भी तो खेल रहे हैं ना नी सर्फेसेस पे। किसी और के हैं 4 शतक नहीं है ना, 4 शतक जड़े हैं। आई थिंक लाइक द फैक्ट दैट ही हैज बिकम द 3rd captain in history to score 4 tons in a series, that's definitely worthy of a lot of praise. So good on you, Shubman. अच्छा जी, और अगला सेंचुरियन कौन था? जडेजा का एक बड़ा फिट स्टैटेबल है। कैन यू डू मी अ फेवर सादी? कैन यू ओपन जडेजा स्टैट्स और इन इंग्लैंड में जाकर उसकी बैटिंग पे भी जाओ और उसकी बॉलिंग पे भी जाओ, बिकॉज़ रविंद्र जडेजा कंप्लीटेड 1000 runs in England during this test match. अच्छा जी, इन इंग्लैंड। he's played 16 matches, 31 innings में 1096 runs.
107 हाईएस्ट, 42.15 की एवरेज, Hold that. 200s and 750s. 42.15 की एवरेज, राइट? कैन यू Yeah. लुक एट द अदर एवरेजेस इन अदर कंट्रीज? इंडिया में ज्यादा होगी, Uh, बाकियों में मुझे बताओ, कहीं और है इतनी? इंडिया में भी इससे कम है, इंडिया में भी इससे कम है। सिर्फ श्रीलंका में इससे ज्यादा है 85 की, लेकिन वो खेला भी 2 इनिंग्स है उधर. एग्जैक्टली, तो वो उसको निकाल दो. जडेजा, the best version of Ravindra Jadeja, the batter, comes in England. Yeah. I feel like that is quite a fun statistic. That man. is fun. Like it's quite ridiculous. And of course, he's dropped on 0 by Joe Root, but then he's gone on to score his 5th 50-plus score of the series. Yeah. Pehle 400s on the four half 450s, centuries yeah. on the bounce mari thi, and now he's gone on to score his very valued 100. Yeah. ठीक है, celebration में No. नहीं, तलवारें भी छिड़काई हैं उसने. Yeah. And look, like I said earlier, him and Ben Stokes are the best all-rounders. Not only has he scored these 1,096 runs in England at an average of 42.15, विकेटें देखो जरा. ओवरऑल इन इंग्लैंड हाँ, they're 30+. वहाँ पे थोड़ा सा मार खा जाता है. 34 विकेट्स हैं, लेकिन अगर 16 मैचेस में 34 विकेट्स आ रही हैं, ही इज एवरेजिंग 48.47. But in this particular game, he was India's best bowler. No. 4 for 143 in 37.1 overs. Again, begs to ask the question why Kuldeep wasn't playing. Right? यही आप सोचते हो कि स्पिनर ही सबसे सक्सेसफुल था, वो 4 for 143 लेके गया हुआ है, तो क्या कर रहे थे आप? मगर there are only 3 players in the history of sports, Adi, or sorry, in the history of cricket, जिन्होंने एक अवे वेन्यू में, अवे कंट्री में 1,000+ runs और 30+ wickets दिए. Would you like to know who they are? Yes, I would. Gary Sobers in England. Yeah, 1,800 something runs. Any country? हाँ, any country. Gary Sobers in England has done this. 1,000+ runs and 30+ wickets. Jadeja in England has done this. और तीसरा वाला Wilfred Rhodes in Australia है. उसको चलो जो भी. No. But yeah, that is quite an achievement. क्यों जो भी I don't know वैसे? क्यों जो भी कर दिया. मैंने good on you Wilfred Rhodes. I don't know if you're alive still or not, but चलो. It's elite company to be in. And look, he is one of India's most important players. इसमें कोई शक नहीं है. He's made that number 6 his own. And he rejected the handshake. Yeah. So रवि जडेजा. अच्छा जी, फिर था वॉशिंगटन अति सुंदर. Ati Sundar, yeah, congratulations on your maiden 100. नहीं- 101 not out. Really good. 107 not out जडेजा के थे, 101 not out इसके थे. एंड तक इसके 100 के लिए वो खेले. Yeah. और उसका पहला 100 था, क्यों ना हाँ, खेले? खेलोगे. हाँ, I mean his best was 96 not out, and now he scored his maiden test 100. I feel like Washington Sundar is going to be a mainstay in India's team. But Sadi, पहले हम सोचते थे ना, he is the Ashwin replacement. I see him a bit differently. He is not as good a bowler as Ashwin, not even Obviously. close. But batter better है. बैटर बहुत बेहतर है. हाँ. बैटर बहुत अच्छा बैटर है. I feel like in home tests, फिलहाल, if you go with that combo of Washington, Kuldeep, Jadeja, और या तो फिर इन तीनों में से एक ना हो तो अक्षर आ सकता है. हाँ. Yeah, that's pretty solid. Yeah. You've got to say. I mean, नहीं, that's really good. They should be winning at home with that. And you've got that trio of spinners. You've got 3 different kind of spinners, and you've got 2 players who can bat as well in those. हाँ यार, इसको ड्रिफ्ट भी मिलती है हाँ. काफी with the ball. So देख लो ना, एक ऑफ ही हो गया, एक लेफ्ट आर्म स्पिन हो गया, एक लेफ्ट आर्म wrist स्पिन हो गया. वाकई क्रेजी. very good diversity. और पता है जडेजा, if he's had enough तो अक्षर comes in, हाँ. but अक्षर भी थोड़ा बुड्ढा है, बस ये मसला है. Okay, But but he's still- what, 32? For this particular cycle, I हाँ. feel like India's spin trio or quartet even if हाँ. need be is sorted for home tests. हाँ. चलता है? Yeah. Yeah. अच्छा. अच्छा जी, who's next? I don't know, bro. सेंचुरी हो गई है? सेंचुरी होगी, सारी Century हो गई सेंचुरी. है, चलो जी. I feel like we can talk Pant. about Crawley and Duckett as a pair. क्रॉकेट. हाँ, क्रॉकेट की बात कर लेते हैं. डकेट स्कोर्ड 94, क्रॉली स्कोर्ड 84. हमेशा शायद ना ओपनिंग पेयर चलता हो, बट जब चलता है ना, it is literally one of the major contributing factors behind whatever success baseball has had. I've always said this. मैं आज से नहीं कह रहा. मैंने हमेशा कहा कि यार this opening pair does kind of work. क्रॉली यार, क्रॉली है, माना. कभी चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तो अच्छा चलता है. चलता है तो लेकिन अच्छा चलता है. कैन यू बैंक ऑन दैट एज अ टीम? I think you can bank on the pair. आई डोंट नो ब्रो. डकेट तो चलता है. वो अगर 20 भी बनाकर आउट हो तो 40 की पार्टनरशिप तो देगा ना. 20 को हम अप्रिशिएट 40 की पार्टनरशिप को अप्रिशिएट कर रहा हूं. मैं यार, कह वो रहा तो हूं फिर कि किसी तरह भी हो सकता है. consistency with which this pair has performed as a pair, playing the cricket the kind of cricket that they play, I feel like they've been a success. और ये जरा they're unsung as a pair. आई डोंट नो ब्रो. I know डकेट को तो हम मानते हैं प्लेयर. देखो, डकेट तो है प्लेयर. हाँ. डकेट के साथ फॉर Duckett's- एग्जांपल क्रॉली के अलावा कोई और अच्छा होता. कौन? कोई मुझे नहीं पता, मैं वैसे कह रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अगर उनके पास ऑप्शंस नहीं है तो ऑब्वियसली क्रॉली खेलेगा. अगर ऑप्शन होती तो तुम कह रहे हो कि 20 रन बना के जाता है तो 40 की पार्टनरशिप होती है. अगला वाला अगर कंसिस्टेंटली 40 रन बना के जाता है तो 80 की पार्टनरशिप होती है. दैट्स द डिफरेंस, राइट? हाँ,
नहीं, बात वो तुम्हारी कंसिस्टेंट, I- वो I- 20 बना ले या 10 बना ले, उस दिन वो 0 ऑफ thing is 12 बॉल्स पे था। what I'm trying to say is when they work, When it really works out. वो तो कुछ भी हो सकता है बैराम, when they work they But work, अगर आप देखो ना लेकिन इनको- more often than not Crawley doesn't work। Yes, but Crawley यार, मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि he doesn't need to score a 50 for the pair to work. वो तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है ना, you don't need to score a 50 for the pair to work। Point is, I feel like ये जब दो चलते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है बेसबॉल को, एंड इनकी सक्सेस में जब ये चले हैं बेसबॉल इज डन वेल। वो ठीक है, वो तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वुड यू रादर हैव इन योर टीम अ पेयर दैट परफॉर्म्स कंसिस्टेंटली और अ पेयर दैट परफॉर्म्स वंस इन अ वाइल, लेकिन वो ठीक है एडवांटेज दे जाता है आपको ज्यादा। If the pair is smashing the new ball for boundaries, if that's their job, and we can even check लेकिन this. वो अगर 3 टेस्ट में एक में चल रहे हैं, तू देख ही ले, look at their average as an opening pair, ये किस्सा ही मुक जाएगा। मेरे ख्याल से कि वो जो डिसरप्ट कर रहे हैं ना प्लान्स को शुरू में आके, उसकी आप थोड़ी प्राइस पे कर रहे हो, और जब वो चल जाते हैं तो फिर वो बहुत ही ज्यादा चल जाता है। यहाँ पे तो पता नहीं कोई 166 की ओपनिंग पार्टनरशिप मार गए ऐसे। ये मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो क्रॉली इज नॉट एन एलीट प्लेयर, क्रॉली इज मोर मिस देन हिट, ठीक है। बेन डकेट इज एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। लास्ट टेस्ट में नहीं चला था, लेकिन ओवरऑल अगर 4 टेस्ट में देखें तो ही इज बीन रियली गुड। पहले टेस्ट मैच का प्लेयर ऑफ द मैच था। Look, when a guy like him is averaging 42 plus or whatever, playing the brand of cricket that he plays, that is worth a lot of praise. I feel like he is really, really unsung in that regard. But if these guys are averaging 40 runs, हाँ नहीं, they're averaging more than 40 runs. देखो ना They're बस। averaging 45.55. there you have it. If that player is giving me 45.55, I take it. और इसलिए मैं पहले मैच से और इस मैच से पहले, फोर्थ टेस्ट से पहले मैं यही कह रहा था कि यार पोप को मैं बेशक निकाल दूं टीम से, क्रॉली को नहीं ना वो मैं मेरा पॉइंट नहीं समझे, तो मैं वैसे कह रहा था, मैं भी अभी क्रॉली को ना निकालूं क्योंकि ऑप्शन और कोई नहीं Option और कोई है नहीं। आई थिंक ही इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। and you need the other guy to come and play attacking cricket too, right? जो भी लेकिन आएगा। हाँ, लेकिन जहां पे पोप की बात आती है ना, देयर इज अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल और एन ऑप्शन अवेलेबल दैट यू कैन ट्राई। अब पोप जो है, although he scored 71 runs in this test, I didn't particularly enjoy his innings. I don't know, bro. Down the ground, बुमराह को चौका मारा था, यॉर्कर थी बुमराह की। मैंने कहा था सादी, I've never watched a more uncomfortable 4. Yeah. Of course we can't completely take the piss out of him because he scored 71, 71 are still good runs, but he was dropped on 48. मारा मुश्किल चांस था। उसके स्कोर्स अगर देखें, अब मुझे ऑन द टॉप ऑफ माय हेड याद नहीं है, पहले टेस्ट में एक सेंचुरी थी, उसके बाद failure, उसके बाद ये failure. 71 है, राइट? And he is a bit of a first batting innings spammer. Yeah. Second second batting innings, innings जो होती है ना, third and fourth yeah. innings, he's averaging less than 20 runs Yeah. per dismissal. I feel like Ollie Pope is not top drawer. He has probably done okay for a number 3 batter in this era, because number 3 batters aren't scoring any runs. Yeah. But then again, I would be tempted to test out Jacob Bethel at 3. No. Why not? लेकिन आई डोंट थिंक वो लास्ट वो टेस्ट अब नहीं करेंगे। अब तो 71 मार गया तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड वही वाली बात है यार, his median score was really low when we looked at it. और median balls faced भी कम थी। Median score इसका 16.5 था जब हमने देखा था। That's bad, man. He has that stat, right? Whenever he crosses 30 odd, he averages 80 odd, something like that. Crazy. He barely ever crosses 30. So Ollie Pope वही Schrodinger's Ollie कह लो उसे। I don't know. I still am not convinced, and I don't think he should stick around. आई थिंक इंग्लैंड के बैटर्स की तो सारे की बात हो इस गई। पिच पे तो 71 की है ना, सिर्फ ब्रुक और स्मिथ का, जेमी स्मिथ का स्कोर आई मीन शार्दुल स्कोर 41। शार्दुल स्कोर्ड 41। अच्छा, इंग्लैंड के बैटर्स की तो सारी बात होगी, उनके बॉलर्स की बात कर लें। इंग्लैंड के बॉलर्स की यार, look, Ben Stokes की बात कर लें। Yeah. Exceptional for his 5 for 72 and bowled 24 overs with long ass spells once again. I think Jofra in the first innings was good. he was good in Yeah, the yeah. first one, लेकिन बाद में तो he was done, bro. Yeah, बाद में he was done when he's bowling 128 six तक क्या ही। He did get Gill's wicket in the second innings or third innings. yeah. तो वो टेस्ट की बड़ी बकवास है। बस ठीक है, सेकंड इनिंग्स Third innings बेहतर है। I like third innings ball, but First, second, first innings में he delivered 26.1 overs. That's a lot. His figures were good for 26.1 overs. 3 for 73, that's quite good. And then फिर से ऋषभ पंत को सीधा आउट किया. Sent his off pole for a vacation once again. Brilliant dismissal. अब स्टंप आकर जमीन में गाड़ दिया था उसने फिर से. कमाल. ठीक है, and he has a very interesting stat, Sally. Jofra Archer does exceptionally well versus left-handed batters. I don't know what's up with that. He's averaging in the mid-20s versus left-handers. और राइट हैंडर्स में 40s। अभी भी उसने कोई 7 विकेट लिए हैं ना लेफ्टीज की लिए। एक गिल की नहीं थी और एक सिराज की नहीं थी, राइट? बाकी तो लेफ्टी उसने पूरी सीरीज में आउट की है। So that's something worthy of looking into. I don't know what the science is. No. Actually don't. Maybe it's the angle, maybe it's something else. But he is a far better bowler to left-handed batters. Go figure. It is a thing. अच्छा, इंडियन बैटर्स की बात रहेगी यार। We've talked about the Centurions, but we didn't really
पे अटेंशन टू ऋषभ पंत एंड साई सुदर्शन मैं और and जायसवाल। मैं करता हूं उन पे बात। मैं एक जरा बुमराह की बात करना चाहता हूं अच्छा। तुमसे। पेस वाज डाउन, वी ऑल सॉ इट, ठीक है। वाज लुकिंग लाइक अ शैडो हिमसेल्फ, कंसीडर्ड हिज फर्स्ट और हिज maiden 100 in test cricket, Yeah. or you know he's still averaging below 20 runs per wicket. Do you think that Bumrah can end his career with an average of under 20 runs per dismissal? I think under 20 नहीं तो 20-21 उससे ऊपर नहीं जाएगी। I think नहीं कर पाएगा। मतलब अंडर 20 एक बहुत ही ज्यादा वो ज्यादा हो जाता है। आप crazy scene हो 21 पे भी कर रहे हो तो It's crazy. you're a goat। Thing is कि this one shit game, which probably was the worst Bumrah's ever played. हाँ। ठीक है, we're not defending him. He bowled poorly. Was it due to the body just not being ready? It could be the body being drained, but सादी मैं याद है लाइव के चल रहे थे हम और मैं साथ ये भी देख रहा था और मैं कहता सादी यार he's bowling wide of off stump. He isn't targeting the stumps. Why isn't he targeting the stumps? नहीं समझ आई मुझे उस टाइम पे। पता नहीं। ठीक है, वो गलती की इसने। He bowled poorly. माना कि drained था whatever, मगर इतनी अच्छी bowling नहीं कराई कि 2 for 112 is bad. और देखो एक बुरी गेम से उसकी shoot up हो गई है close to 20. It's one other bad game and it goes above 20. So I feel like वो और बैड डेज तो आते हैं यार। बहुत मुश्किल हो जाएगा। Sometimes you start off well in a test match, उसके बाद आपको कोई निगल हो जाती है तो फिर नहीं वो वाली बात बोलेंगे। It's crazy. यही तो ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की यार। It's crazy that as of now he's averaging under 20 runs per dismissal, but I don't think this is something that he can retire with. Unfortunately. हाँ, मुश्किल है यार। आज तक किसने की है यार? सिड बार्न्स और वो पता नहीं वही वाली बात है कदीम जमाने वाला प्लेयर। और क्रिकेट ही फर्क। और कुछ यार मतलब उस टाइम नहीं बहुत लोग हैं जो ज्यादा खेले हैं। एक ज्यादा खेले वालों में ना क्लोज टू 200 विकेट्स थी। हाँ, क्लोज टू 200 क्लोज 200 प्लस विकेट्स में तो आज तक किसी ने 200 प्लस विकेट्स में आज तक किसी ने भी नहीं किया। क्रेजी। बेचारा बुमराह भी इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, बट उसकी ग्रेटनेस डिमिनिश नहीं होगी if he ends up averaging or retires with an average of 20.5. बट आई डू थिंक एक इसके अंदर वो मसला है जब सारे डिस्कस कर रहे होंगे ना कि यार how good was Jasprit Bumrah once he's retired from Test cricket? Longevity, yes. Being fit for the entire Test series, ये वाला एक question mark raise होगा। बिल्कुल होगा। But he'd probably still make my top 10 in Test cricket. जब रिटायर होगा तब बात करेंगे। करंटली तो आता है टॉप 10 में मेरे लिए, बिकॉज he's averaging under 20. बट longevity वाली चीज को मैं भी वैल्यू करता हूँ। ठीक है। अब एक जिमी इतने साल खेल गया, आपको पता चल रहा है ना कि कितना मुश्किल है टेस्ट मैच खेलना। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का बेस्ट ही है अभी भी। कपिल से ऊपर है। वो तो है। कुछ लोग शायद कहते हो कपिल ऊपर है। वो एरास पे भी आ जाती है बात। ऑब्वियसली जिसने शायद कपिल को देखा हो, वो ग्रो अप किया हो, ये मेरा आइडल है, तो उसके लिए तो वही होगा। अच्छा, इंडियन बैटर्स की बात कर लेते हैं और फिर एक और मैंने एंड पे बात करनी है तुमसे। हाँ, वो मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है, बट यशस्वी जायसवाल से स्टार्ट कर लो। जायसवाल वैसे तो डक आया दूसरी इनिंग्स में, अगर जो 58 इसने मारा ना यार, इट वाज अ वियर्ड वन। He was surviving out there. It was very dogged. It was a bit difficult in the first session. It was difficult, और पता नहीं कैसे इसकी outside edge नहीं लगी, मगर credit to him for not getting out earlier. Ultimately gets out to Liam Dawson, which is interesting. But वो 58 यार, it was a fighting 58. And there was this one really cool shot, वो Cricket 24 वाला, वो गिर कर इस तरह नहीं होता वो, the get out of the way ramp और जो भी uppercut, get out of the way uppercut. I love that. मैं Cricket 24 में shot मारता हूँ. I am a little sad because for the first time in his test career, Yashasvi Jaiswal is averaging under 50 runs with the bat. Yeah, whenever I hear this stat जो तुम मुझे बताते हो कि जावेद मियांदाद never average under 50 in test cricket. It's ridiculous. इसका यही सीन चल रहा था आज तक। अब पहली दफा गिर गया 50 से नीचे, और मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं जब इसको ड्राफ्ट्स में पिक करता हूँ कुछ नहीं होता यार कि he could overturn that। आगे इंडिया में भी खेलना है। जायसवाल है यार, you know how good he is यार। उफ, I would still, दो प्लेयर्स हैं इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया और पाकिस्तान में से सिर्फ, इवन दो तीन है, कमिंडू को भी गिन लो। कमिंडू मेंडिस, यशस्वी जायसवाल, साउथ शकील। I'm expecting these guys to end their careers with an average of 50 plus. They should, in theory. करना चाहिए। जायसवाल को तो करना चाहिए। जायसवाल, you can bet. कमिंडू obviously कभी ना कभी तो drop of form आएगी। लेकिन फिर भी he's averaging what 64 right now. He's going a bit crazy as well. And South has played for a fair bit now. छोटा करियर उसका भी नहीं है इतना, और वो भी 50 प्लस एवरेज कर रहा है, और अभी उसने साउथ अफ्रीका में 50 मारी थी। कमिंडू का क्या 60 प्लस ही थी ना? कमिंडू का सैंपल साइज थोड़ा कम होगा। मैं चेक करना चाह रहा हूँ फिर भी क्या। अच्छा, Kamindari. Kamindu 14 tests, he's averaging 62.66. 14 अभी थोड़ा South कम। Has South played 30 tests yet? I'm not sure. पाकिस्तान तक खेलती नहीं, 30 नहीं खेले होंगे। 30 कहाँ ही खेले होंगे।
अच्छा जी, इसके साथ भी थोड़ा सूडीशेक सुडशेक सूडीशेक ने 19 ही खेले, 19 है सिर्फ यार, हद हो गई है। साउथ शकील ने 19 टेस्ट खेले में यार, 19 टेस्ट खेले, जाती है ये। जायसवाल ने इन दोनों से ज्यादा खेल ली है, जायसवाल इन दोनों के बाद आया था, नहीं कमेंडू से पहले आया था। 2022 2022 का डेब्यू है, 19 टेस्ट मैच। 3 साल 19 टेस्ट इज नॉट इनफ टेस्ट मैन। पाकिस्तान क्या कर, You're basically saying South plays every test match for 10 years and doesn't end up with 70 test matches. That's bad. Anyway. So khair, Jaiswal, fix it. Come back to 50 plus. अच्छा जी, साई की हमने वैसे बात तो कर ली थी, यार साई he was good, हाँ किस्मत चली थी वैसे, हाँ, 20 पे ड्रॉप हुआ यार, it was an easy catch for Jamie Smith, very easy, अब बट उसकी गलती नहीं है, he looked quite composed, I was really impressed with his pull shots, ठीक है। 61 maiden test half century, good on him. I have faith in Sai Sudarshan, I feel like he can eke out his spot in this team, कर सकता है वो, उसके अंदर टैलेंट है। डक जो था वो quite like that गौतम गंभीर dismissal, रूबिश वाला, क्या निकल रहा था बॉल की तरफ से, नहीं निकल रहा था, नहीं इसको समझ आई, कंफ्यूजमेंट हो गई बेचारे के दिमाग। He is a good player, Sai Sudarshan। हाँ नहीं really good player। और उसने पहले चलो at least that's one thing done, maiden half century तो खत्म हो गई ना, कर ली। Rishabh Pant was my favorite half century of the game. Yeah, entertaining as always, because he had scored 37 runs when he fractured his toe, or Vokes fractured his toe, and that was ugly. खून निकल रहा था, फूल गया था, उसके actual toe से ज्यादा वो जगह सूज गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो वापस आया कैसे, पता नहीं कैसे। वो तुझे पता है ना, फिर no pain is greater than the pain of losing for your country, इसलिए वापस आया वो। उसका कोच गौती है, उसको ऑप्शन ही नहीं मिली होनी, तो कह रहा था तू जाएगा बैटिंग करेगा, मुझे नहीं पता। गौती ने ये बोला हो ना, वो बेचारा लड़ खड़ाता हुआ आ रहे, छक्का ठोक दिया उसने, वो भी जोफ्रा जिसने बातें की हुई थी पिछले मैच में। मतलब with that injury he scored 17 runs bro. On day 2 there was only one positive for India, and that positive was the 17 runs that Rishabh Pant scored with a broken toe to get to 54, and I mean what a fighter, shades of Graham Smith, यार उसका तो हार्ट टूटा हुआ है, इसका पाउंड टूटा हुआ है, shades of Nathan Lyon, इसको खड़े होने में मसले हो रहे थे, मुझे Rishabh Ghaza, I don't know bro, ज्यादा एग्रीवेट नहीं हो जाती होगी यार? हाँ यही होती है ना फ्लिप साइड, क्या आप करना चाहते हो रिस्क, फिर पता नहीं। खैर अब तो he's out of the series and apparently he's out for 6 weeks. 6 weeks Look, अब वो जगदीशन आ गया। अब मुझे पता नहीं 6 weeks before he came on to bat again था। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, एग्रीवेट तो नहीं हो गया होगा, और यार हो भी सकता है हो गया हो, मगर देन अगेन यू नो मुश्किल सीरीज थी ये, बाद में इतनी मुश्किल नहीं है। वो जगदीशन शायद तुम्हें देखने को मिल जाए, या अभी तो जुरैल खेलेगा, या एंड जुरैल चलो बेचारे को बैटिंग मिल जाएगी साथ, प्रॉब्ली हाँ फाइनली जुरैल को बैटिंग मिल बेचारा कीपिंग ही किए जा रहे, पता नहीं। I'll be really looking forward to his both his innings, कब से कीपिंग कर रहा है finally Dhruv Jurel will bat, but Rishabh Pant यार, I think you're an entertainer. He is an entertainer. For me, you're the best wicketkeeper batter currently in the world. इसमें कोई शक भी नहीं होना। I don't know, इस वक्त कोई करीब नहीं आता। Second पे रिजवान मैं कहूँगा। I don't know. Oh, Jamie Smith भी है। I don't know, bro. Alex Carey is doing some stuff to me. Alex Carey is scoring clutch runs. Jamie Smith is scoring a lot of runs, and then there is Rizwan. These are the 4 guys you'd probably talk about. Yeah, यही है। अच्छा, मगर पंत फिर जिस reliability के साथ करता है ना, एक तेज किस्म की क्रिकेट तेज किस्म की क्रिकेट, काउंटर अटैकिंग, नो फियर, आप entertaining the crowd, sixes with one hand, sixes with broken toes, sixes नीचे ग्राउंड पे पड़े हुए, वो पीछे जा रही है बॉल, पता नहीं क्या हो रहा होगा। वो कहते हैं ना, मेरे दिमाग में एक चीज आई है, he could say sticks and Vokes could break my bones but Gauti's words would never hurt me. मैं खेलूंगा। अच्छा, और कोई 50 रह गई यार, केएल राहुल, ओह लोकेश को तो मैं भूल ही गया यार, not only that 90 in the third innings but 46 in the first, पहले भी कह चुका हूँ, no one has left the ball better than KL Rahul all series. He plays the ball late, he has scored the most runs for an Indian opener overseas in Sena countries after Sunil Gavaskar. It's pretty ridiculous record. Sena में as an opener वैसी runs करना मुश्किल है, और इसने second most किए में, सनी जी के बाद केएल राहुल का नाम आ रहा है। I think that's his legacy. That is his legacy. That has to be. Because the overall numbers वही वाली बात है, क्योंकि ये तो underachiever है, मगर यार इस tour पे I feel like at times he's even been better than Shubman Gill. Obviously not overall, but at times.
You know, जिस तरह वो खेला है, जिस कंपोजर के साथ It is a bit difficult opening the innings as compared to number 4. बिल्कुल वो एक थोड़ा और सा ऊपर से caveat है. जिस ease के साथ इसने ओपन किया you've got to hand it to him. He got a good ball by a broken Stokes. Yeah. पता नहीं वो भी किस तरह हुआ है. वो भी थोड़ी सी low हो गई थी. Generally he's been dismissed on good deliveries. आप ये नोट करो, केएल राहुल को पहले भी जो स्टोक्स ने LBW किया था वो दुनिया में कोई नहीं खेल सकता था. वो जिस तरह अंदर आई थी बॉल जिस पेस पे. So I think that he has been an essential cog for India. And you know what? I could predict a late career bloom for KL Rahul. I can see it happening. अब experience I think वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई उसकी शोल्डर्स पे. और कुछ होते हैं इस तरह के पर्सनालिटीज होती हैं जो थोड़ी सी ओवरशैडो हो जाती हैं बाय द स्टार पावर अराउंड यू, राइट? कोहली एंड शर्मा वर टू ऑफ दोज गाइज. बिल्कुल. आई थिंक अब राहुल इज द गाय के उसे समझ आ गई होगी, आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन ओवर हियर, आई नीड टू कैरी ऑन नाउ. And I think he's doing it brilliantly well. I think he's shouldered that responsibility brilliantly well. He's the senior batter over here alongside Rishabh Pant, who's gone. And he has really played the role of a senior batter to perfection. Like I said, यार, look at his leaves. और देखो कितना लेट खेल रहा है बॉल को. वो जब ऑफ साइड पे मारता है तो फ्रंट फुट भी सॉलिड है, बैक फुट भी पंची शॉट्स खेलता है. लेग साइड पे देख लो कितनी उसकी खूबसूरत पोल्स हैं, चेक शॉट्स. He's so safe. His technique is perfectly suited to open the innings in England. Basically, KL Rahul. So yeah, Lokesh. कनौर लोकेश कनौर इसका मैजिक ही और मजा आया. स्पॉन्सर वैसे मिल सकता है कनौर हमें. Okay. अच्छा, I think we've pretty much talked about everyone, everything. Yes. जडेजा की भी बॉलिंग की बात कर ली थी. आपने ये भी बता दिया था कि अगले मैच में कौन फिट होगा कौन नहीं होगा, उनके स्क्वाड भी डिस्कस कर लिया. आई थिंक इंडिया के लिए मैं एक तो फोर्स चेंज है, Jurel comes in for Pant, और एक और चेंज जो if Arshdeep is fit, play him. हाँ. Akashdeep is fit, play him. Play Kuldeep Yadav. Yes. Please. अब तो यार वाकई खिला दो please. बहुत हो गया. शार्दुल को निकालो. It's okay. You want. चलो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि यार आपको नहीं समझ आ रही थी, आप बैटिंग लाइन एक्सटेंड करना चाहते हैं बैटिंग लाइनअप. अब आपको ये नजर आ गया होगा कि 20 विकेटें ज्यादा जरूरी है. होपफुली आपको नजर आ गया होगा. जहाँ पे जडेजा ने उस सरफेस पे 4 for लिए in 4 for 143. सोचो कुलदीप क्या कर सकता था. Right? Yeah. You have to play him in one game. As for England, I think Gus Atkinson, if he's fit, he comes in. Jamie Overton का पता नहीं वो उन्होंने. I think Cars has to go, bro. Cars को तोड़ना है क्या? Overton comes in for Cars. Vokes शायद फिर खेल जाएगा. But Cars नहीं खेल सकता. मेरे लिए तो नहीं खेल सकता. Ben Stokes, how much can he bowl? नहीं, he will play. How much can he bowl? They need his overs. I think वो जाएगा, पूरे overs करवाएगा. He's been their best bowler, England's best bowler. So that's going to be a tricky one. Stokes की fitness पे अब concerns होंगे. अच्छा, last point अब बेराम. हाँ, ये बड़ा जरूरी point है. यार जरा ओल्ड ट्रैफर्ड में सिक्योरिटी गार्ड आ गया था एक बॉय के पास जिसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी और उससे कह रहा था जो भी कवर इट अप और चेंज इट और व्हाटएवर, यू कांट वेयर दिस. दैट्स प्रीटी डिप्लोरेबल. A very poor look on Lancashire cricket. Obviously उनका ग्राउंड है ये. And you know, I've worn an Indian jersey on this show. I've worn an Indian jersey in my city. और मुझे तो कभी किसी ने कुछ कहा नहीं है. यहाँ पे एट अ क्रिकेट गेम किसी ने क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी हुई और उसको आप कह रहे हो कि चेंज इट और कवर इट अप, दैट्स जस्ट बुलशिट. एंड द फैक्ट दैट ए रेड रोज Lancastrian legend in Wasim Akram rang the bell just a couple of days ago. उसके बाद आप ये कर रहे हो, shame on you. यहाँ मैं कितने कवर किए मैंने प्रेस बॉक्सेस में मैचेस पाकिस्तान के और कोहली की जर्सी देखी है मैंने. वहाँ पे आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है. लेकिन एंड में फिर ये आपकी हरकतें नजर आ जाती है ना सामने, where you have these xenophobic mindsets कि अब वो पाकिस्तान की जर्सी नहीं पहन सकते. लेकिन सीन ये है ना कि उधर क्लियरली रूल्स जो हैं उस टिकट पे या कहीं भी लिखे हुए थे कि ओनली फ्लैग्स, क्लोथिंग एंड बैनर्स रिलेटेड टू इंग्लैंड और इंडिया क्रिकेट टीम्स आर परमिटेड इन द स्टेडियम. आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ रूल देन. दिस शुडंट बी अ रूल यार. ये क्या बात है? आप किस तरह, आप पाकिस्तान की जर्सी की बात नहीं है. फॉर एग्जांपल ये रूल है. मैं क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल 2018 फीफा वर्ल्ड कप देखने गया था. आई वाज वेयरिंग अ जर्मन जर्सी. बात ये नहीं है, इन्होंने लिखा ना सिर्फ इंग्लैंड और इंडिया. चलो ठीक है, पाकिस्तान से बड़े मसले हैं, निकाल दिया. किसी और की भी जर्सी पहन के आओगे तो निकाल देंगे. What if someone's wearing a West Indian jersey? यार मैंने कितनी दफा देखा पाकिस्तान का मैच होता है जिसमें इंडियन जर्सी नजर आती है मुझे. ये मैं तो आपको पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ ना, where I see that कोहली guy. ठीक है, almost every time I have seen so many
मैचेस ऑफ पाकिस्तान आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान देयर आर इंडियन जर्सीज, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। क्या बात? अगर आप इंडिया के हो और आप मैच देखने आ रहे हो, जरूरी थोड़ी इंडिया खेल रही हो, हाँ। आप पहनो इंडिया की जर्सी, अजीब आप स्टूपिडिटी। जहां के भी हो पहनो, आप जहां के ना भी हो पहनो। हाँ। मैं अगर कोई रैंडम मैच में साउथ अफ्रीका की जर्सी पहन जाऊं, उसमें क्या बड़ी बात है? वैसे ही पहन लो, मैच में ना भी पहन के जाओ, क्या मसला है? It is absolutely deplorable that this has happened. It needs to be called out. Wasim Bhai should actually raise his हाँ। voice. Atif Bhai ने तो किया, हाँ, Atif Atif Bhai Nawaz ने, hasn't held back. I haven't held back. A couple of more people, you know, have raised their voices on this, and this is just, you know, no one owns this sport. Yeah. ठीक है? I mean, someone technically does own this I sport. mean. But this sport is for everyone. Yeah. आपने फाइनेंशियली अगर हाईजैक कर भी लिया स्पोर्ट, ये स्पोर्ट है तो सबके लिए, तो ये क्या बदतमीजी है? आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे माहिन हर एक को हर जगह फॉलो करना है। हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, कास्ट बॉक्स, कास्ट एडिक्ट, पॉडकास्ट एडिक्ट, आई हार्ट रेडियो बोल दिया था, और भी हैं जहां भी, वहां पे हमें फॉलो कर दें और सुन लें हमारी बातें। बाकी बताएं हमें प्रेडिक्शंस क्या हैं आपकी आखिरी टेस्ट मैच के लिए। मुझे फीलर्स आ रहे हैं 2-2 के, तुझे क्या आ रहे हैं? 2-2। मुझे भी 2-2 के आ रहे हैं, आप भी बताएं मैं नीचे। या 2-1 भी हो सकता है, तुम्हें ड्रॉ लग रहा है? हो भी सकता पता नहीं, लंदन का वेदर नहीं चेक किया, ऑल्दो वेदर में जब चेक कर रहा हूँ आजकल बारिशें तो आती नहीं है। हाँ, बारिश एक भी नहीं है। चलो, we'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.